Welcome, Khushru sir. This is, Thank I you. guess, our second session together. Yeah. Yeah. So, who doesn't know, Khushru sir is a national judge for endurance. He himself is a very good endurance rider, coach, and endurance event curator. Sir, please tell us more about yourself. Like how you. Nothing. You've said more than enough. So nothing. I've been associated with endurance in the last 10 years, and first learned it in Gujarat, and then I've been abroad also. At France also, I've gone and experienced. I've not ridden over there, but I've gone and experienced endurance over there. In UK, I've gone and experienced twice. Learned a lot from them, and we had trainers, British trainers, come to our place for 2 years, once for 4 months and once for 3 months. Learned a lot from them. They ride in the British team. And we also had the international coach from FEI, who for which we did the judging seminar, and we passed our exam. That's how we became the national judges. Also, the highest that I did well was when I was 56 years old in All India 60 kilometers. I stood first. That's the highest I've been able to achieve. 80 kilometers did the next month. I got disqualified at 60 kilometers. My horse showed lame. That's the highest level I've ridden. I've curated around 6 to 7 events, taken part in about 12 times in India. That's the most I've done. But I've been associated internationally and had some experience which I would like to share with you all. Okay, thank you so much, sir. People who are new here, I would like to tell you a bit about ISHL. So, this is an organization of like-minded people who are dedicated to the uplifting and introducing the indigenous breeds of India to modern day equestrian sports like dressage, show jumping, endurance, and etc. So, this is our second online session for endurance sports specifically, and the first one was also conducted by Khushru sir only. Yeah, so sir, I'll hand it over to you now. You can start with the session. Thank you. Thank you. Can we have the first slide? So, good morning, everybody. I know it's a Friday morning. Whoever's joined, I really appreciate. But sorry, that's the best time I could get. So, what we are going to cover is very briefly. We are going to have an overlook on each of these titles. Of course, each of this topic can be spoken for more than 4 to 6 hours. But we'll just get an overview of the topics, and then as people feel, you all can ask me questions, and then as uh, Sharmaji feels, we will do more next time on specific topic. But this is basically the overall brief. So we are going to talk about saddle fitting. We are going to talk about rider fitness. We are going to talk about horse fitness, because we always only think about horse fitness, but it's not. Horse fitness is not important. It's not as important as the rider fitness. So we'll talk on that also. Then we'll talk about a strategy, how you want to do the ride, how you want to succeed, how you don't. Should I talk in Hindi or English? What is important? We can do both, like mix. If everybody wants Hindi, I can talk in Hindi also. I don't have a problem. So tell me. So today we only have people from India only. So yeah, Hindi is also fine. ओके तो फिर वेट गेट आता है, तो वेट गेट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वो बात करेंगे। और इवेंट होने के बाद में घोड़े के साथ क्या करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट होने के बाद में भी बहुत सी तकलीफें आती है, बहुत सी चैलेंजेस आती है। तो ये बेसिक ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी इसके अंदर अगर बैकग्राउंड का जो आप पिक्चर देखेंगे, तो बैकग्राउंड का पिक्चर बहुत कुछ बतला रहा है। ये बैकग्राउंड का पिक्चर एक कारण से डाला हुआ है कि बेसिकली हम सबको घोड़े से प्रेम है, राइडिंग से प्रेम है, लेकिन एक बच्चे की तरह, एक 2 साल या 4 साल का बच्चे की तरह हम भी सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। अपना जो शौक है, अपना जो जानवर के प्रति प्रेम है और शौक है, उसके साथ हम क्या और बेटर कर सकते हैं। यही यही ये मौका, ये चांस है, और यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। और बेसिकली कोई किसी को सिखाते नहीं है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज आपसे शेयर करूंगा। तो ये पिक्चर बहुत कुछ बोलता है कि
घोड़ा तो आ गया, घोड़े से प्रेम है, राइडिंग आ गया, लेकिन उसके बाद में मैं और क्या कर सकता हूं जिससे मैं मेरे घोड़े से और नजदीक आ सकूं और मजा ले सकूं। तो ये बेसिक एक पहला ओपनिंग आइडिया था। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? अभी सैडल फिटिंग, बहुत से जन बोलते हैं कि सैडल क्या है, सैडल देख लिया, सैडल का पिक्चर ले लिया, वो सैडल वाले को बोला पिक्चर भेजो और ले लिया, बट नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। वील गो इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ सैडल फिटिंग। सो ये फर्स्ट जो लाइन है, सैडल फिटिंग डिसाइड्स द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर पार्टनर। सैडल फिटिंग अगर आपका सही होएगा तो आपका घोड़े का लाइफ लंबा रहेगा। बहुत टाइम अगर आप सैडल गलत बिठाओगे, सैलड गलत बिठाने से घोड़े के कमर में जो प्रॉब्लम्स आएगी, फिर 2-3 साल के बाद आप बोलोगे मेरा घोड़ा परमानेंटली लेम हो गया, मेरा घोड़े को परमानेंट प्रॉब्लम है, वो पीछे से खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, ये घोड़ा निकाल दिया, दूसरा घोड़ा लेके आया। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप तक देखोगे और अगर अपना इच्छा है कि अपन आगे बढ़े, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप तक देखोगे तो 12 साल, 15 साल, 16 साल के घोड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? उसका मेन कारण है, अगर आप घोड़े को बचाओगे और घोड़े को तैयार करोगे तो सैडल इसमें 90% काम करता है। तो एक एक पॉइंट उस सैडल में जाएंगे। वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे पावर पॉइंट में मैंने एक पॉइंट लिखा है। तो पहला पॉइंट है, वाई अ सैडल, नॉट फॉर द राइडर बट मोर फॉर द हॉर्स। सो नॉर्मली जितने जन मेरे को फोन करते हैं, पिक्चर भेजते हैं, सैडल का ऊपर का फोटो भेजते, बोलते हैं ये सैडल अच्छा है क्या, मैं खरीद लूं क्या? सैडल ऊपर से कोई मायने नहीं रखता है। सैडल का जो ऊपर का शो है और ऊपर का जो फोम है वो राइडर के लिए है। सैडल के नीचे जो होता है, जो जो घोड़े की कमर को लगता है और घोड़े की कमर की जगह पे सही बैठना या नहीं बैठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि आप सैडल अपने लिए नहीं खरीद रहे हो, आप सैडल घोड़े के लिए खरीद रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच बदली होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि सैडल आप इसके लिए रख रहे हो कि घोड़े का कमर अच्छा रहे, घोड़े का कमर बचा रहे। अगर घोड़े का कमर अच्छा रहेगा, घोड़े का कमर बचा रहेगा, तो आप उसको लंबा चला के सकोगे। आप सोच लो कि आप एक हैवरसैक ले रहे हो, आप अपने कमर पे हैवरसैक रखा है, और अगर वो हैवरसैक आपको लगता है और आपको आपको 10 साल वो हैवरसैक लगते जाएगा, तो वो आपको उसको उसको डैमेज कर देगा, आपका नर्व डैमेज होएगा, आपका बैक डैमेज होएगा। तो ये सैडल से पहला पॉइंट दिमाग में लगाना है कि सैडल घोड़े के लिए ज्यादा है और मेरे लिए कम है। अगर घोड़े को सैडल सही फिट होता है तो फिर अपने को जो भी करना है ऊपर अपने को देखना चाहिए, लेकिन घोड़े को सैडल सही फिट होना चाहिए। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? नो, बिहाइंड, वन बैक। या अभी ये जो पॉइंट है, हॉर्स स्पाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, it has hundreds of nerves running through them। बेसिकली जो घोड़े का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप समझोगे, घोड़े का पूरा स्ट्रक्चर है वो उसका स्पाइन से बाहर निकलता है। एक पहला पहला काठी, अगर एक आपको ऐसा घोड़े का बनाना है तो पहले आप स्पाइन का काठी बनाओगे, फिर बाजू के रिब्स लोगे, फिर पैर को जोड़ोगे, फिर पीछे का पैर को जोड़ोगे, फिर उसके ऊपर गर्दन और मुंह जोड़ोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो घोड़े का स्ट्रक्चर है वो है उसका स्पाइन, और इंसान का भी। वो स्पाइन के अंदर, जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, मल्टीपल बेन्स होते हैं, 100-200 नर्व्स होते होंगे, कितने नर्व्स एग्जैक्टली मेरे पास नंबर्स नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घोड़े का सैडल रखने का वजह कि स्पाइन के ऊपर अपना सैडल बैठना नहीं चाहिए, स्पाइन टोटली फ्री रहना चाहिए, स्पाइन टोटली फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अगर घोड़े का स्पाइन फ्री होएगा तो ही घोड़ा आपको कुछ रिजल्ट दे पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कोई सैडल्स नैरो होते हैं, वो सैडल नैरो होने से वो घोड़े का स्पाइन पे बैठ जाता है, या सैडल आउट होता है घोड़े का स्पाइन पे बैठ जाता है, जैसा अपन बेयर बैक राइडिंग बोलते हैं। तो बहुत टाइम आदमी लोग पूछते हैं, हम लोग बेयर बैक राइडिंग कर सकते हैं, इज सैडल कंपलसरी? एक्चुअली सैडल इज नॉट कंपलसरी। आपको बेयर बैक राइडिंग करना है आप करो,
लेकिन बेयर बैक राइडिंग करके आप रिजल्ट ला पाओगे? हाँ, 20 किलोमीटर में हो जाएगा, कहीं एक आधा बार आप 40 किलोमीटर में कहीं पास हो जाओगे या जीत जाओगे। लेकिन अगर आप उसको, क्योंकि बेयर बैक राइडिंग में आप स्पाइन के ऊपर बैठोगे, आपको अगर वो घोड़ा लंबा चलाना है 10 साल 15 साल, तो उसका स्पाइन को बचा के रखना पड़ेगा, तो ही वो घोड़ा आपको 15-16 साल तक काम दे पाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सोचने की है। सैडल स्पाइन पे कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ये प्लीज सब लोग ध्यान करो। सैडल स्पाइन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसा सैडल को आपने रखा, आपने सैडल को घोड़े के बैक पे रखा, तो कहाँ कहाँ वो टच होना चाहिए? जैसा पहला स्लाइड, पहला पिक्चर देखोगे, फिट, ये पूरा स्पाइन को छोड़ के पूरा एरिया पे अगर आपका सैडल बैठता है, मैक्सिमम एरिया पे आपका सैडल बैठता है, तो दैट इज वेरी गुड। जो सैडल पैड है वो मैक्सिमम एरिया पे जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम एरिया पे जाएगा तो आपका जो लोड है वो उसके कमर के ऊपर स्प्रेड होएगा, तो एक पॉइंट लोड नहीं पड़ेगा। अगर पॉइंट लोड नहीं पड़ेगा तो घोड़े को वो पॉइंट पे इंजरी नहीं होएगा। तो आपका सैडल जब आप रखते हो, वो नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये स्लाइड को आपको अभी इतना समझना है। ये पहला अगर आप देखोगे रेड में है, दैट इज द करेक्ट पोस्चर। ब्रिज जो दिखा रहा है, ये ब्रिज क्या दिखा रहा है आपको कि ये 4 पॉइंट मेन है आपका, शोल्डर के 2 और बैक स्पाइन के 2, ये 4 पॉइंट मेन है जहां पे प्रेशर आता है। तो 4 पॉइंट पे आपका सैडल लगना ही चाहिए। रॉक जो बोल रहे हैं, अभी रॉक ऐसा है कि बीच में सैडल लग रहा है और आगे और पीछे नहीं लग रहा है, तो आप सोचो कि जो सी सॉ होता है उसके जैसा आपका सैडल हो जाएगा, तो वो तो होना ही नहीं है। फिर जो ट्विस्ट बोलते हैं, ट्विस्ट में एक बाजू लग रहा है एक बाजू नहीं लग रहा है, क्रॉस में लग रहा है या कहीं आप ये लग रहा है, ये सब डेंजर है। ये पोजीशन में आपको घोड़े को, आप आज बोलोगे कि मैंने मैंने चला लिया, लेकिन आगे जाके आपके घोड़े को प्रॉब्लम होएगा। अभी जैसा ये नेक्स्ट स्लाइड आपने देखा, शोल्डर के 2 पॉइंट, अभी अभी सैडल कहाँ बिठाना है? पहला बात हो गया स्पाइन पे नहीं बैठना चाहिए, दूसरा बात हो गया फ्लैट बैठना चाहिए, मैक्सिमम सरफेस आना चाहिए। तीसरा बात हो गया जो आगे का शोल्डर एरिया है, वो शोल्डर खत्म होके आपका सैडल चालू होना चाहिए। और जो पीछे का हिप के ऊपर जो बोन आता है, लास्ट रिब आता है, वो लास्ट रिब के पहले आपका सैडल खत्म होना चाहिए। इसके बीच में आपका सैडल बैठना चाहिए। आपका सैडल शोल्डर के आगे चले जाएगा तो शोल्डर, अभी मान लो आपका शोल्डर है, आप यही सोचो आप हैवरसैक लेके चल रहे हो, आपको हैवरसैक लेके 40 किलोमीटर करने का, अभी आपका हैवरसैक अगर शोल्डर जॉइंट पे होएगा तो आपका हैंड मूवमेंट नहीं होएगा, आपका हैंड मूवमेंट नहीं होएगा, आप रन नहीं कर पाओगे, आपका रनिंग होएगा लेकिन यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो सैडल आगे नहीं जाना चाहिए, शोल्डर जॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और सैडल बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे का रिब पे नहीं जाना चाहिए, घोड़ा अनबैलेंस होता है। तो सैडल बीच में बैठना चाहिए, शोल्डर के पीछे, और लास्ट रिब को मैक्सिमम टच कर सकता है या उसका पहला रिब के पहले। ये आपका सेंट्रलाइज पोजीशन होगा। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? उसके बाद में, नो नो नो, द वन बिहाइंड, ये सैडल रखने के बाद में आपका जो फ्रंट पोर्शन है, जो गलेट बोलते हैं, वो गलेट कम से कम 3 इंच ऊपर रहना चाहिए। और ये पिक्चर सबसे बेस्ट पिक्चर नहीं है, 3 इंच, 3 इंच खाली सैडल पे नहीं, आपको बैठने के बाद में देखना चाहिए कि मेरा 3 से 2 इंच उंगली जाता है कि नहीं, क्योंकि सैडल पे बैठने के बाद में भी सैडल थोड़ा सा नीचे बैठता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सैडल बिठाओ, पहले तो आपने स्पाइन पे नहीं बिठाया, अभी आपने फ्रंट बैक सेंटर बिठाया, उसके बाद में उसका फ्रंट गलेट पे देखने का है कि आपका 3 इंच मिनिमम जाना चाहिए, बैठने के बाद में एटलीस्ट 2 से 3 इंच जाना चाहिए। सो ये आपका फ्रंट पोर्शन हो गया। कैन आई से द नेक्स्ट स्लाइड? फिर आप घोड़े के पीछे जाके आपको देखने का है कि घोड़े के स्पाइन के ऊपर सैडल नहीं बैठे, और यहां से पीछे से आगे तक आपको दिखना चाहिए। मोबाइल में टॉर्च चालू करो, टॉर्च सामने लगाओ और टॉर्च से देखो कि मेरा स्पाइन को कहीं भी सैडल लगना नहीं चाहिए, आपका स्पाइन टोटल हवा में रहना चाहिए, आपका स्पाइन टोटल फ्री रहना चाहिए। तो पहले आपने स्पाइन के ऊपर नहीं रखा, आपने सैडल को फ्रंट बैक पोजीशन लिया, आगे का पोर्शन देखा कि 3 इंच रहना चाहिए, पीछे भी आपका मिनिमम 2 से 3 इंच रहना चाहिए, वहां तक आपने सैडल फिटिंग चेक किया। नेक्स्ट स्लाइड।
अब ये मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट, ये जो बात है मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट प्रेशर ऑन द हॉर्स बैक। अभी आपके आपके कमर के ऊपर समझो मैंने एक उंगली से एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही आपको मैंने सुला दिया, और आपके बैक के ऊपर एक छोटा सा 2 इंच का कोई लकड़ा रखा और उसके ऊपर 60 किलो का वजन रखा, तो क्या होगा, आपको वो पॉइंट के ऊपर डैमेज होगा, आप वजन ले ही नहीं पाओगे। तो उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड आना नहीं चाहिए अपने घोड़े के ऊपर। अभी मान लो आपका कमर है, आप सोए हो, उसके ऊपर पूरा एक लकड़ा रखा, 2 फुट का लकड़ा रखा, और उसके ऊपर मैं खड़ा रह गया 60 फुट पे, आप वो झेल पाओगे? बिकॉज द लोड इज डिस्बर्स, लोड आपका पूरा फैला हुआ है। तो लोड फैलना चाहिए, पॉइंट लोड नहीं आना चाहिए। इसीलिए पीछे का जो सैडल पैड है, सैडल पैड जो इसका जो गटर आता है, जो बनता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रेशर सब बाजू पड़ना चाहिए। नेक्स्ट इमेज में आपको देखेंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अभी ये एक रफ इमेज है, तो सही बैठा नहीं है, लेकिन इस पे से आपको आपको क्या करना चाहिए, सैडल, ये पहले सब पोजीशन देख लिया, उसके बाद में आप घोड़े के कमर पे पाउडर लगाओ, उसके बाद में आपका सैडल उसके ऊपर रखो, और सैडल को थोड़ा सा रख के ऊपर से प्रेशर दो जैसा आदमी बैठा है, और बाद में सैडल निकाल के नीचे देखो कि कहाँ कहाँ सैडल लग रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लग रहा है, कहीं पे मेरा घोड़े का शोल्डर अप और डाउन है, या कहीं पे मेरा सैडल डाउन है। अभी ये अगर आप सैडल देखोगे, ये मेरा सैडल है, इसमें पैड देखो मेरा कितना बड़ा है। ये पैड इतना बड़ा होने से आपका सरफेस पॉइंट लोड कम होता है, घोड़े के बैक को ज्यादा एरिया में वजन जाता है। इट इज मच मोर बेटर, आपका घोड़ा लंबा चलेगा, आपका घोड़े की बैक बचेगी, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो वापस जैसा बोल रहा हूँ, ये पिक्चर के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप पाउडर डालो, सैडल रखो, और देखो कि सैडल चारों बाजू पूरा फैल के पाउडर लगता है, तो यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा सैडल बराबर बैठ रहा है। ये एक बार हो गया। इसके बाद में आता है सैडल पैड। नेक्स्ट इमेज। अभी क्या है कि सैडल पैड के अंदर भी, अभी कितना भी आप कर लो, कहीं पे ऐसा होता है कि कोई घोड़े में भी डिफेक्ट होता है कि एक शोल्डर ऊपर होता है, एक शोल्डर नीचे रहता है, या पीछे के पुट्टे में थोड़ा सा आउट, एक बाजू का पुट्टा नीचे है, या कोई सैडल भी, या कोई सैडल भी क्रॉस है, या कहीं पे सैडल का मेकिंग में भी थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया और सैडल थोड़ा सा क्रॉस है। तो सैडल पैड आपको कैसा लेने का है, सैडल पैड ऐसे होल वाले लेने चाहिए। ये सैडल पैड जब होल वाले होते हैं, तो पैकिंग वाले, मीनिंग पॉकेट्स रहते हैं इसके अंदर, तो वो सैडल पैड के अंदर आप पैकिंग डाल के अपना लेवल सही ले सकते हो। अभी एक जैसा हमारा घोड़ा है, उसको सैडल एकदम बराबर बैठा, लेकिन वो आगे से सैडल नीचे जा रहा है, तो हमने क्या किया, सैडल पैड के अंदर दोनों बाजू आगे पैकिंग दिया, तो सैडल पैड वहां से ऊपर हो गया, तो वो सैडल सेंटर पॉइंट पे आ गया और स्ट्रेट हो गया। तो सैडल पैड भी उतना ही महत्व है जितना सैडल है। सैडल पैड हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लगा रहे हैं कि खाली वो कपड़ा डाल दो नीचे, नहीं। सैडल पैड इसके लिए है कि अगर आपका सैडल में थोड़े से डिफरेंसेस है, या अगर आपका घोड़े में थोड़े से डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस कवर करने के लिए आपको सैडल पैड हेल्प करेगा। अल्टीमेट गोल ये है कि अपना सैडल सही बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। उसके लिए अगर सैडल पैड में पैकिंग डालना है तो कोई गलती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सैडल फिटिंग और सैडल का खरीदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सैडल होना चाहिए, सही सैडल घोड़े को फिट होना चाहिए। अगर सही सैडल फिट होएगा तो ही आप घोड़े को लंबा चला सकोगे। आप ये मत सोचो कि आज मैंने सैडल लगाया, अरे मैं तो 20 किलोमीटर करके आया, आज अच्छा है। नहीं, आज अच्छा है वो तो पहला दिन है, पहला दिन कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपका सैडल रॉन्ग बैठ रहा है तो थोड़े टाइम के बाद में आपको घोड़े के शोल्डर्स पे मार्किंग दिखेंगे। घोड़े के शोल्डर्स या घोड़े के बैक पे जो कलर है, अगर काला घोड़ा है तो वहां पे बाल सफेद होने का चालू होएगा, अगर सफेद घोड़ा है तो बाल काला होने का चालू होएगा। तो आपको दिखेगा कि अरे यार मैंने कुछ गलत किया है, मेरा सैडल बराबर बैठ नहीं रहा है, मेरे को वापस चेक करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सीजन टू सीजन, जैसा घोड़ा ज्यादा काम करे, घोड़ा का वजन बढ़ा, तो आपका सैडल फिटिंग चेंज होएगा, तब आपका सैडल पैड काम आता है। घोड़ा का वजन बढ़ा तो आपको सैडल पैड चेंज करना है, उसका पैकिंग चेंज करना है। घोड़े का वजन घटा तो सैडल पैड से आपका पैकिंग चेंज करना है।
सैडल पैड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना सैडल इंपॉर्टेंट है उतना ही सैडल पैड इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये बेसिक आइडिया है ऑफ अ सैडल फिटिंग। इसके ऊपर मेरा भी एक यूट्यूब का वीडियो है 2-3 घंटे का, वो इट इज इन डेप्थ ऑफ मेनी सैडल्स। तो इफ एनीबडी इज गॉट एनी क्वेश्चंस राइट नाउ फॉर सैडल फिटिंग, आप हमको पूछ सकते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस खत्म करेंगे। Either you can write it in the chat box or just raise your hand. So accordingly, I'll unmute you. Any questions, anybody? So right now we don't have any questions. Okay, no problem. So yes, let's we go to can. the next topic. Let's have the next topic. तो अभी ये बात हो गई राइडर फिटनेस की। अभी अगर आप देखोगे, हम लोग पहले राइडर फिटनेस ले रहे, फिर हॉर्स फिटनेस ले रहे, क्योंकि अगर राइडर ही फिट नहीं है तो हॉर्स का क्या बात करें। हॉर्स कितना भी अपना जान देगा, अगर आप ही फिट नहीं हो तो क्या करोगे। तो इसमें जो पॉइंट है, राइडर फिटनेस, शेयरिंग द बर्डन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग द बर्डन, आपको अगर 40 किलोमीटर जाना है तो आपको भी उसके अंदर मेहनत करना है। आपको लगेगा गोरा मेहनत करेगा, मैं बैठे रहूंगा, तो ये बात नहीं चलेगी। ये पार्टनरशिप है, गोरा आपका पार्टनर है, गोरा आपका औजार नहीं है, गोरा आपका पार्टनर है। अगर आपका पार्टनर को आप संभालोगे नहीं, अगर अपने पार्टनर के साथ आप शेयर नहीं करोगे, तो आप कुछ नहीं सक्सेस कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइडर फिटनेस का मतलब है शेयरिंग द बर्डन। वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक एक मैं आपको समझाऊंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइडर वेट, एक 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 उदाहरण सर्वेज और उदाहरण किया हुआ है कि राइडर वेट घोड़े के 25% के आसपास रहना चाहिए। तो राइडर अगर आपका 350-400 किलो का है, तो आपका घोड़े का वेट 100 किलो के ऊपर नहीं, आपका राइडर का वेट 100 किलो के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक थंब रूल है। ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि जितना राइडर लाइट होएगा उतना बेनिफिट है, उसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है कि जितना राइडर। लेकिन कभी कोई छोटा घोड़ा है, 350 किलो का घोड़ा है, और 350 किलो के घोड़े के ऊपर आप 100 किलो के आदमी को बिठाओगे, तो वो अनप्रोपोर्शनेट हो जाता है। अगर वो अनप्रोपोर्शनेट हो गया तो आपको कहीं ना कहीं वो तकलीफ देने वाला ही है, आपका राइट सही नहीं जाएगा, आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आने वाला ही है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनली तो 80 किलोमीटर के ऊपर राइडर को अलाउड ही नहीं है राइडिंग करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई राइडर भारी है, 90 किलो का है, 100 किलो का है, तो उसको 450-500 किलो का घोड़ा होना चाहिए, तब उसका रेशियो सही बैठेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी राइडर का पोस्चर, राइडर का जो पोस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़े के ऊपर। अगर सैडल मेरा सही बैठा, अगर सैडल ने सब बाजू प्रेशर दिया, लेकिन अगर मैं तिरछा बैठ रहा हूं, मैं आगे बैठ रहा हूं या मैं पीछे बैठ रहा हूं, या मेरा राइट साइड के ऊपर वजन ज्यादा है और मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर वजन कम है, तो भी घोड़े को वो तकलीफ होने वाला है, तो भी घोड़ा तकलीफ देने वाला है। सेम 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 फंडा आपका हैवरसैक में है। एक बाजू आपने वाटर का बॉटल रख दिया 4 लीटर वाला, और दूसरी बाजू आपने टॉवल रखा, तो आपका हैवरसैक अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा तो आपको तकलीफ पड़ने वाला है। राइट साइड का शोल्डर आपका दुखेगा, लेफ्ट साइड का शोल्डर नहीं दुखेगा। तो बैलेंस होना चाहिए, आपका वेट सेंटर में होना चाहिए। और अगर आप पोस्चर देखोगे, यहाँ पे जो करेक्ट जो मार्क किया है, आपका हिप और आपका हील दोनों लाइन में होना चाहिए। अगर आप दूसरा इमेज देखोगे तो हिप हील वो राइडर का आगे है, अगर वो हिप आगे है तो आप प्रेशर ज्यादा डाल रहे हो घोड़े के ऊपर, आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा। सो लेफ्ट साइड का जो पिक्चर करेक्ट लिखा हुआ है, उसमें हिप और आपका हील दोनों एक लाइन में रहना चाहिए। वो दोनों लाइन में रहेगा तो आप और बेटर बेनिफिट घोड़े को दे पाओगे। वो आगे दिखाऊंगा क्या बेनिफिट मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट। अभी आप अगर देखोगे, इंटरनेट पे सर्फ करोगे, इंटरनेट पे ढूंढोगे, तो
हमारे यहाँ अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बना है कि राइडर स्टेमिना, राइडर फिटनेस। अभी तक यही सोच है कि घोड़े को तैयार करो, हम तो बैठ जाएंगे। नहीं, लेकिन ये बहुत अभी जैसा ये एक ऐड देखोगे, फिट टू राइड इन 9 वीक्स, ये आपको भी फिट होना है। आप जैसे घोड़े को काम देते हो, घोड़े को स्टेमिना देते हो, घोड़े का स्टेमिना बढ़ाते हो, वैसे आपको अपना मसल, अपना स्टेमिना भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो यू विल फेल। वो क्यों फेल होएगा, वो आपको लास्ट स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये राइडिंग करो, आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा राइडिंग किया इवेंट के पहले, लेकिन उसके बाद में आपका बॉडी फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपका मसल्स को टाइट करना पड़ेगा, आपके वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके बॉडी को फिट करना पड़ेगा, स्टेमिना डेवलप होना ही चाहिए, नहीं तो आप राइड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी राइडर का मेंटल फटीक और पेशेंस। आपका घोड़ा तैयार है 80 किलोमीटर करने के लिए, अगर लेकिन अगर आप 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पे आप खुद थक गए, आप मेंटली परेशान हो गए, फटीक हो गए, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए, फिजिकली आप थक गए, अगर वो चीज होएगा तो आपका घोड़ा आपको साथ नहीं दे पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 80 किलोमीटर करना है, तो आपका पर्सनल फिटनेस भी वो लेवल तक जाना चाहिएगा कि मैं लास्ट 80 किलोमीटर तक घोड़े के ऊपर फिट रहूंगा। नहीं, पहला 20 किलोमीटर मैंने बहुत अच्छा चलाया, फिर तो मैं बैठे रहा घोड़े पे। नहीं, अगर आप बैठे रहोगे तो घोड़े के ऊपर डबल वजन आएगा। आपको ये बात समझना है कि आपका फिटनेस क्यों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आ रहा है, प्लीज समझिए। आपको ये समझना है कि आपका फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल फटीग क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस मोमेंट आप थक जाओगे और आप बराबर ट्रॉट नहीं करोगे, कैंटर में आप बराबर नहीं बैठोगे, आप घोड़े के ऊपर मिनिमम 50% ज्यादा वेट डालने का चालू करोगे। मान लो आपका वजन है 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक आप फ्रेश थे, आपका स्टेमिना था, आपका पावर था, 20 किलोमीटर तक आपने सही राइडिंग किया, सही ट्रॉट किया, सही कैंटर पे बैठे, तो 20 किलोमीटर तक आपका घोड़े के ऊपर 80 किलो वजन पड़ रहा है। 20 किलोमीटर के बाद आप थकने का चालू हो गया, आप फटीक हो गया, आपने बराबर ट्रॉट नहीं किया, आपने बम्प किया बीच में, कैंटर बराबर नहीं किया, आप बाउंस कर रहे हो, तो ये समझ लो कि बाकी के 20 किलोमीटर आपके घोड़ा 120 किलो का वजन लेके चल रहे हैं। अब यही सोचो कि अगर अगर मेरा घोड़ा 80 किलो, मेरा एक्चुअल वेट 80 है, 80 का वजन लेके पूरा इवेंट इवेंट किया, और मेरा घोड़ा 120 किलो का वजन लेके पूरा इवेंट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो पर्सनल फटीग है, आप अगर थक जाओगे तो आप घोड़े को थकवा दोगे। यहां जो मैंने लिखा है, इफ द राइडर इज टायर्ड ही विल पुट 50% एक्सेस वेट। अगर आप थक गए हो तो आप कम से कम 50% आपका वजन बढ़ा रहे हो घोड़े के ऊपर। आप 80 किलो हो तो आप लगभग 120 किलोमीटर का राइडर हो गया। इसमें क्या आएगा, वर्चुअली ही विल हैव टू कैरी द हॉर्स। ये मुहावरा है कि अगर आपने वो नहीं सही किया तो ऐसा हो जाएगा कि आपको घोड़े को उठा के भागना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा थक जाएगा, घोड़ा आपको फेल कर देगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राइडर फिटनेस इज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हॉर्स का फिटनेस है। आप ये बात समझ के चलिए। खाली बहुत जन बोलते हैं अरे मैंने ऐसा किया, घोड़े तैयार हो गया, घोड़ा तैयार हो गया, लेकिन आप तैयार हुए कि नहीं इवेंट के लिए? अगर आप तैयार नहीं हो इवेंट के लिए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो राइडर फिटनेस इज अ मस्ट, प्लीज इसके ऊपर काम कीजिए। ये राइडर फिटनेस टॉपिक इज ओवर। अगर कोई पॉइंट है तो पूछिए, अभी आप लास्ट में भी पूछ सकते हो। सर आई थिंक यू आर टू क्लोज टू द कैमरा, थोड़ा सा पीछे चले जाइए ओके, ताकि और अच्छा, या आई यू डोंट कैन नो, शेयर योर स्क्रीन। आई थॉट पीपल आर जस्ट सीइंग द पावर पॉइंट। नहीं, स्टिल आई मीन एम आई बेटर नाउ? यस, या ओके, थैंक यू। सॉरी, समवन वाज आस्किंग। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। सर, मुझे क्वेश्चन था कि सर अगर मतलब 80 किलो का राइडर होगा तो घोड़े का वेट मतलब 25% मतलब घोड़ा लेते समय हम लोग को देखना पड़ेगा या फिर हम लोग को ही खुद को वेट करना कम करना पड़ेगा सर? क्योंकि क्या होता है, जब भी हम घोड़ा परचेस करने जाते हैं तो एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट वेट कैलकुलेट करके हम लोग ये लेते हैं, घोड़ा परचेस करते हैं। तो न्यू कमर जो रहते हैं, मतलब जो न्यू राइडर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 70-80 का के आसपास रहेंगे,
तो कैसा घोड़ा मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना, क्योंकि अभी हमने राइडर के ऊपर देखा, लेकिन घोड़ा लेते समय भी वो ध्यान रखना चाहिए ना हमें सर। तो 350-400 किलो का एक मारवाड़ी अंदाज का घोड़ा आता है, 60 इंच या 62 इंच का होएगा। तो 350-400 किलो के आसपास होता है। जो मेरे पास है वो मेरा एवरेज है, हमने देखा है कि 350-400 के आसपास होता है। तो एक 80 किलोमीटर का राइडर है, तो उसको उसको एक घोड़ा, देखो आप कहीं अगर आपको इतना जरूरी है तो आप वे स्केल पे लेके जाके भी घोड़ा वजन करा सकते हो। वेइंग स्केल सब बाजू है, सब सब गांव के बाजू है, सब सब नाके पे मिलता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप अनप्रोपोर्शनेट लोगे, अगर आप अनप्रोपोर्शनेट घोड़ा लोगे तो घोड़ा थकने वाला ही है ना। घोड़ा थकने वाला है। अगर उसी में उतनी ताकत नहीं, अभी आप 80 किलो के आदमी हो, मैंने आपके ऊपर 20 किलो दिया, 30 किलो वजन दिया, लेकिन आप अगर 80 किलो और आपको ऊपर मैंने 60 किलो वजन डाला तो आप नहीं उठा पाओगे। वी हैव टू अपने आप को उस जगह में रख के सोचो कि क्या होने वाला है, तो आपको चेक करना पड़ेगा बेसिक साइज। अभी आप 80 किलो का आदमी और एक पोनी लेके आओगे 56 इंचेस का, तो आपका रेशियो नहीं बैठेगा ना। हाँ। और सर क्लासिक क्वेश्चन सा था, सर एंड्योरेंस राइडिंग में मतलब मारवाड़ी ब्रीड या फिर काठियावाड़ी, दोनों में से कौन सा मतलब प्रेफरेबल रहता है, और क्या हाइट का घोड़ा मतलब राइडर को लेना चाहिए? राइडर का वेट क्या है? सर 80 केजी, मेरे मेरे ही बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो 350-400 किलो का घोड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो घोड़ा लगभग आपको 62 इंचेस के आसपास का मिलेगा घोड़ा। 62 के आसपास का रीजनेबल बोन होगा, तो 350-400 के आसपास रहेगा घोड़ा। और मारवाड़ी देखो, लेकिन सर मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी या मिक्स, अभी तो ऐसा है कि नोबडी कैन प्योरली से कि ये प्योर मारवाड़ी है या प्योर सिंधी है या प्योर काठियावाड़ी है। कोई भी घोड़ा आपको चल सकता है। घोड़े का नेचर क्या है, घोड़े का नेचर क्या है, घोड़े का बिल्ड क्या है, वो जो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। फिर वो मारवाड़ी हो काटिया, देखो मैंने जब 60 किलोमीटर में मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था, मेरे पास, मैं समझता हूँ मेरी घोड़ी ज्यादा मारवाड़ी है। वो मारवाड़ी थी, 1 नंबर मारवाड़ी था, 2 नंबर थारोब्रेड था, और 3rd नंबर सिंधी था। तो ऐसा कोई थैंक यू कोई सर। और हम लोग आधे आधे मिनट के डिस्टेंस पे ही थे, ऐसा नहीं था कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो ऐसा कोई मायने नहीं है कि मारवाड़ी या अभी किसी का काठियावाड़ी घोड़ा जीत गया तो काठियावाड़ी घोड़ा अच्छा है, किसी इवेंट में मारवाड़ी घोड़ा जीत गया तो मारवाड़ी, वो बात नहीं है। घोड़े के ऊपर आप मेहनत करोगे वही बात है, और घोड़ा सही होना चाहिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड में घोड़े का समझ पड़ेगा। लेट्स गो टू द थैंक यू नेक्स्ट सर। स्लाइड। कैन यू ऑल सी मी नाउ? यस सर। Yes, sir, perfect. सो अभी अभी अपन बात कर रहे हॉर्स फिटनेस के ऊपर। तो ये जो पहला फ्रेज डाला है मैंने, हॉर्स फिटनेस, प्रिपेयर हिम करेक्टली, अगर आप इसको सही तरीके से तैयार नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एक बात समझना है, घोड़े को कोई नॉलेज नहीं है। घोड़े को उतना ही नॉलेज है जो आप उसको दिखाओगे और सिखाओगे। वो तो एक क्ले के माफिक है, आप उसको जहां जैसा मोल्ड करोगे घोड़ा मोल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर हिम करेक्टली। आप उसको तैयार नहीं करोगे और फिर बोलोगे मेरा घोड़ा ने धोखा दे दिया, वो बात गलत है। पहले अपने में फाइंड आउट करो फॉल के, अपन क्या गलत किया जो अपना घोड़ा ने कोई गलत एक्शन दिया। सो विल गो थ्रू द पॉइंट्स। लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये फिटनेस का प्रोग्राम है, लेकिन फिटनेस पे पहुंचने के लिए ये फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड टेम्परामेंट। आपको एक बात समझना है कि आप बोलोगे नहीं नहीं ये घोड़ा तो अच्छा है, खाली वो घोड़ा बहुत मस्ती करता है, बहुत तकलीफ देता है, तो घोड़ा वो अच्छा नहीं है। अगर घोड़ा बहुत मस्ती करता है, घोड़ा तकलीफ देता है, तो घोड़ा अच्छा नहीं है। घोड़े का टेम्परामेंट्स भी अलग रहते हैं, हर इंसान का टेम्परामेंट अलग होता है, वैसे घोड़े का टेम्परामेंट अलग होता है। तो आपको वो घोड़े घोड़े का टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर उसका टेम्परामेंट काम है, अगर वो आपसे काम है, अगर वो आपको कोऑपरेट करता है, अगर वो आपसे डरता नहीं है, अगर आपको ब्राइडल लेने देता है, सैडल लेने देता है, इमरजेंसी में नालबंदी करने को देता है, इमरजेंसी में सलाइन लगाने को देता है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी कोई बोलता है मेरा घोड़ा बहुत बढ़िया, लेकिन वो नाल ही लगाने नहीं देता है। अरे वो नाल लगाने नहीं देगा तो आप कैसा उससे रिजल्ट ले पाओगे? आप नहीं रिजल्ट ले पाओगे। कोई बोलता है मेरा घोड़ा सब बराबर है, लेकिन वेट गेट में डॉक्टर को हार्ट रेट नहीं लेना देता है। अरे तो ऐसा घोड़ा मत सिलेक्ट करो। आप एक घोड़े के साथ आप 10 साल निकालने वाले हो। मिनिमम राइडिंग इयर्स 10 साल होता है घोड़े के साथ, अगर अगर अच्छा घोड़ा मिला और नसीब ने आपको साथ दिया तो। 10 साल आप घोड़े को निकालने वाले हो तो सही घोड़ा चाहिए जो आपको कंफर्टेबली हेल्प करे। कल बीमार पड़ गया, उसको सलाइन लगाना है, उसको दवा देना है, उसको कोई कराना है एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात चलता है। देन विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉस्चर। अभी मैं समझूंगा टेम्परमेंट 80% बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉस्चर पे मैं 20% डालूंगा, क्योंकि अनपॉस्चराइज घोड़े भी मैंने देखे अच्छे टेम्परमेंट से बहुत अच्छा रिजल्ट आए। पॉस्चर में कैसा है कि हाथ पैर उसके दोनों चारों पैर सही है, बैक सही है, बहुत डीप बैक नहीं है, बहुत लंबा बैक नहीं। कोई घोड़े एकदम लंबे होते हैं, कोई घोड़े छोटे होके हाइट में लंबे होते हैं। स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट घोड़ा हमेशा अच्छा रहता है। आप अगर स्क्वायर फॉर्मेट देखोगे, शोल्डर का लाइन लो, चारों पैर लो और जमीन का लाइन लो, अच्छा सा पॉस्चर रहना चाहिए, बेसिक पॉस्चर रहना चाहिए। कोई आपको कोई ब्लड लाइन का या कोई कोई बड़ा ये जीता हुआ घोड़ा नहीं चाहिए। आपके पास अच्छा टेम्परमेंट का अच्छा पॉस्चर का घोड़ा होगा, आपका काम सही चल रहा है, वहां तक सही है। नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर इवेंट में मैं देखता हूं कि बहुत जन आते हैं और ऑनेस्टली जेन्युइन होता है इश्यू कि घोड़ा सही साहब, मेरा घोड़ा ट्रॉट बराबर है, वो लेम नहीं है, लेकिन एक पैर वो बाहर डालता है। अभी अगर वो एक पैर बाहर डालता है, उसमें क्या हो जाता है कि वो जेन्युइनली होता है कि हाँ भाई ये उसका आगे का लेफ्ट पैर वो बाहर डालता है, या पीछे का राइट पैर वो बाहर डालता है, या अंदर दबाता है, वो लेम नहीं है। लेकिन वेट, आप एक वेट के दृष्टि से देखो, वेट का काम क्या है? वेट का काम ये है, वो वेट आपको क्यों डिस्क्वालीफाई करता है? वेट आपको इसके लिए डिस्क्वालीफाई करता है क्योंकि उसको लगता है कि घोड़े को कोई तकलीफ हो रही है और अगला 20 किलोमीटर घोड़े को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वेट का वो जवाबदारी है। वेट का जवाबदारी आपको खुश करना नहीं है। वेट का जवाबदारी है कि मेरे को घोड़े के ऊपर टॉर्चर नहीं होना चाहिए। घोड़ा इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उससे स्पोर्ट्स लेना है, लेकिन वो टॉर्चर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं लोकली अपने हॉर्सेज में। जेन्युइनली हॉर्स लेम नहीं होता है, लेकिन उसका एक पैर लेफ्ट या राइट वो बाहर डाल रहा है। लेकिन अगर वेट वो 20 किलोमीटर के बाद देखेगा तो वेट क्या सोचेगा कि भाई ये उसका जन्म से ऐसा है या अभी वो लेम हुआ है। तो अगर वो समझो जन्म से है तो सही बात है, लेकिन अगर अभी लेम हुआ है और 20 किलोमीटर करेगा तो घोड़े के ऊपर क्या बोलते हैं जुल्म होएगा। तो वेट अपने आप से वो घोड़ा डिस्क्वालीफाई करता है। तब वो राइडर बोलते हैं अरे नहीं मेरा घोड़ा तो सही है, मेरा घोड़ा तो सही है। हालांकि कभी राइडर सही होता है। तो ये कोशिश करो कि जिस घोड़े से आप ट्रेनिंग चालू करो उसका ट्रॉट अच्छा हो, सही हो, पैर लेफ्ट राइट नहीं डालता हो, नहीं तो आपको आगे जाके वो इवेंट में वो फ्रस्ट्रेशन, वो मारा मारी, वेट ने मेरा घोड़ा गलत निकाल दिया। वेट ने अपना सही काम किया, वेट ने अपना सही काम किया, वेट को घोड़ा बचाना था, उसका वही काम है। तो ये घोड़ा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली घोड़े सिलेक्शन के ऊपर अपन 4 घंटे बात कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि उसका इन बिल प्रॉब्लम अगर होएगा तो वो घोड़े को साइड में करके अगर एक बेटर घोड़ा काम, क्योंकि आपको अगर 10 साल चलना है तो ये स्टार्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि द हॉर्स शुड बी मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग। देखो हर इंसान में एक अलग अलग इच्छा होती है। कोई बॉक्सर होता है, उसको बॉक्सिंग पसंद है। कोई चेस वाला है, चेस वाला भी स्पोर्ट्समैन है और बॉक्सर भी स्पोर्ट्समैन है। कोई 100 किलोमीटर 100 मीटर स्प्रिंट मारता है, कोई 100 किलोमीटर रनिंग करता है, सब स्पोर्ट्समैन है। यहाँ पॉइंट बाहर के और कोई होता है जिसको नहीं स्पोर्ट्स पसंद है। अभी आप अगर एक घोड़े को भी देखना पड़ेगा, 2-3 बार आप राइड करके उसके अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप है कि नहीं, उसके अंदर कुछ करने की जान है कि नहीं। अगर वो घोड़ा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड हॉर्स, अगर वो घोड़े में वो नहीं है, वो सॉफ्ट घोड़ा है, वो एकदम एकदम डल घोड़ा है, उसमें नहीं है वो जान,
उसको नहीं चाहिए कि मैं रेस खेलूं। अगर वो घोड़े को आप सिलेक्ट करके रोज उसको भगाते रहोगे तो आप भी परेशान होंगे, घोड़े भी परेशान होंगे। उसका नेचर भी देखना है, उसको अचीविंग, वो भी खुश होना चाहिए कि मैंने कुछ अचीव किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ, हमारा एक इवेंट था, तो उसमें लास्ट 10 सेकेंड में मेरा बैलेंस छूट गया। मैं टोटली घोड़े के नेक के ऊपर आ गया, मेरा सिर्फ निकल गया। इट वाज वेरी वेरी सैड ऑन माय पार्ट, बट बैड लक। लेकिन मेरी घोड़ी ने क्या किया, उसने इवेंट खत्म किया। मैं खाली उसके गर्दन के ऊपर लटकता रहा और उसने इवेंट खत्म किया। तो ये घोड़े के अंदर जो जज्बा होना चाहिए वो भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर आपको लगा कि नहीं ये घोड़ा बहुत डल है, ये डल ही घोड़ा है, अभी डल घोड़े का नेचर आप नहीं चेंज कर पाओगे। तो एक स्पोर्ट्समैन फीलिंग रहना चाहिए, उसमें अचीविंग फीलिंग रहना चाहिए, वैसा घोड़ा सिलेक्ट होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया है, ये टॉपिक है फिटनेस का, लेकिन फिटनेस कब चालू होगी, अगर ये 4 स्टेप करेक्ट है। अगर ये 4 स्टेप आपने करेक्ट नहीं किए तो फिटनेस का कोई मतलब ही नहीं, आपकी सब मेहनत फोकट हो जाएगी। आप समझे? सो ये 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टेप सही होंगे तो फिटनेस की बात अभी नेक्स्ट इसमें करेंगे। कैन आई हैव द नेक्स्ट वन? ये अभी बात आ गई फिटनेस। फिटनेस बोले तो ट्रेनिंग आ गया। फिटनेस कब तैयार होएगा, जब आप ट्रेन करोगे। जब आप अपने सेल्फ को ट्रेन करोगे तो फिटनेस आएगा। तो आप घोड़े को ट्रेन करोगे तो फिटनेस आएगा। अभी फिटनेस में, ट्रेनिंग में वर्कआउट, स्कूलिंग, लॉगबुक और वेट गेट। मैं पहले स्कूलिंग का बात करूंगा, वर्कआउट का सेकेंड बात करूंगा। स्कूलिंग बोलेगा तो अरीना में घोड़ा चलाने का। घोड़े को लेफ्ट लेके जाना है, घोड़े को लाइट लेके जाना है। घोड़ा आपका इंस्ट्रक्शन सुन रहा है। आप ट्रॉट में बैठ गए, आपने सिग्नल दिया तो घोड़ा कैंटर उठाता है। आप कैंटर से ट्रॉट करने का चालू किया, आप अप डाउन करने का चालू किया, घोड़े को सिग्नल आता है कि मेरे को ट्रॉट में जाने का है, वो अपने आप ट्रॉट में जाते हैं। लेग चेंजिंग, आउटर लेग, इनर लेग, आप जब ट्रॉटिंग करते हो, आप कैंटर करते हो, ट्रॉटिंग में आपको डायगोनल चेंज करना है। ये सब स्कूल में होता है। अभी जैसा एक एग्जांपल देता हूं, स्कूलिंग इज द बेस ऑफ अ हॉर्स। आप स्कूलिंग करोगे, जैसा अभी राइड पे कैंटर कर रहा हूं, अभी कोई एक हमारा राइडर था, उसने 60 किलोमीटर राइड पे कैंटर किया, वो घोड़ा लेम हो गया। वो बोला सब कुछ बराबर आ रहा है लेकिन तुमने लेग चेंज ही नहीं किया, तो उसका एक लेग फ्रस्ट्रेट हो गया, मसल टाइट हो गया, क्या करेगा घोड़ा? तो आपको घोड़े को टाइम टू टाइम, अगर आप कैंटर में बैठे हो तो आपको घोड़े को टाइम टू टाइम लेग चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप ट्रॉट में बैठे हो, आपको टाइम टू टाइम डायगोनल चेंज कराना पड़ेगा। तो घोड़े बैलेंस रहेंगे। अभी आप मान लो, अभी इंसान का कैसा है, दोनों पैर इक्वल चलते हैं, घोड़े के चारों पैर इक्वल नहीं चलते। तो एक पैर के ऊपर आपने वजन दिया पूरा 60 किलोमीटर, तो वो पैर शायद आपको लेम कर देगा, आप बोलेंगे घोड़ा कैसे लेम हो गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूलिंग का जो बेस है वो बेस होएगा तो ही आपका घोड़ा तैयार होएगा। पॉइंट 1, स्कूलिंग हो गया, घोड़े ने आपका सिग्नल समझने का चालू किया, घोड़े को समझता है लेग चेंज करना है, घोड़े को समझता है डायगोनल, घोड़ा समझने का चालू करेगा। उसके बाद में वर्कआउट बोलेगा तो लॉन्ग राइड्स। वर्कआउट में कैसा है, जैसा सीजन चालू होता है, अभी समझो 15 सितंबर से हम लोग ट्रेनिंग चालू करेंगे। सो 15 सितंबर से पहले 5 किलोमीटर आप खाली वॉक करो, ओनली वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर वॉक करो। 5 किलोमीटर के बाद आने के बाद मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ फ्रेश घोड़े का, कि भाई बारिश में घोड़ा बंद था, बारिश में घोड़ा रेस्ट पे था, बारिश में कैजुअल राइडिंग ही हुआ, तो पहला 5 किलोमीटर उसको वॉक करो 7 दिन। और वॉक के बाद में हर रोज आपको आके ट्रॉट करना है। ट्रॉट करो, घोड़ा लेम नहीं हुआ तो 60वां दिन आप उसको 60 किलोमीटर पे लेके जाओ। 60 किलोमीटर आप 7 दिन चलाओ, 8 दिन चलाओ, 8 दिन 60 किलोमीटर चला, ट्रॉट करो हर टाइम, घोड़ा लेम नहीं हुआ। फिर 60 किलोमीटर को लॉक करके आपका स्पीड बढ़ाओ। पहले आप खाली वॉक करते थे, अभी 60 किलो के अंदर आप ट्रॉट इंट्रोड्यूस करो, आपका स्पीड बढ़ाओ। एवरेज स्पीड आपने जो प्लान किया है कि मैं एक राइडर हूं, मैं 12 की स्पीड से चलाऊंगा, किसी ने प्लान किया मैं 18 पे चलाऊंगा, किसी ने प्लान किया मैं 10 पे चलाऊंगा। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी, सबकी अपनी अपनी शौक है।
तो अभी जैसा मैं 14 के आसपास चलाने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, मेरी मेरी औकात 16 तक जाने की नहीं है, तो 12 से 14 के बीच में मेरी मेरी कैपेबिलिटी, और जो मेरे को मजा आता है, तो 60 किलोमीटर 12 का स्पीड से करो, उसको ट्रॉट चेक करो, उसको 15 दिन उस पे काम दो, उसका स्टेमिना बढ़े, फिर आप 10 किलोमीटर पे जाओ। 10 किलोमीटर पे वापस आपको स्पीड डाउन करना है, आपको स्लो स्पीड से 10 किलोमीटर करना है। 7 दिन 8 दिन उसको तैयार करो, उसका ट्रॉट देखो, घोड़ा लेम नहीं हुआ, फिर 10, आपको आपको समझना पड़ेगा हर घोड़े को, 10 या 12वां दिन पे, 60वां दिन पे आपको फिर अपना 10 किलोमीटर पे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर के बाद आप स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ गया, घोड़ा लेम नहीं हो रहा है, बाद में 15 पे जाओ, बाद में 18 पे जाओ। अगर आप 40 किलोमीटर करें, हमारा जो ट्रेनिंग, हमारे जो ट्रेनर ने हमको सिखाया है कि अगर आप 40 किलोमीटर का इवेंट कर रहे हो तो आपको 20 किलोमीटर ही प्रैक्टिस में करना है। लास्ट 20 किलोमीटर वो घोड़ा एट द डे खींच लेगा। कोई जन ऐसा बोलते हैं कि मेरे को 40 किलोमीटर करने का है, तो मैं रोज घोड़े को 60 किलोमीटर कराऊंगा, तो उस दिन पे उसको इजी पड़ेगा। अभी वो अपना अपना सोच है, अपना अपना प्लानिंग है। जो मेरे जजेस ने मेरे को, जो मेरे ट्रेनर्स ने सिखाया, और जो ब्रिटिश टीम पे भी जाते हैं, उनका ये लॉजिक है कि अगर 80 किलोमीटर है तो आपका घोड़ा 40 किलोमीटर तक ट्रेन होना चाहिए। सो ये हो गया आपका वर्कआउट। अच्छा, इवेंट के 10 दिन पहले आपको वर्कआउट बंद कर देना है। इवेंट के 10 दिन पहले आप वर्कआउट बंद करो। इवेंट के 10 दिन, इवेंट से 10 दिन से इवेंट तक उसको खाली आप बेसिक 4-5 किलोमीटर वॉक पे रखो। क्योंकि अभी देखो, आपने स्टेमिना बढ़ा लिया उसका, आपने फिटनेस बढ़ा लिया उसका, अभी उसको रिटेन करना है अंदर। 10 दिन उसको रिटेन करना है, लेकिन 10 दिन खाली स्टॉल में मत रखो। 10 दिन आप उसको हैंड वॉक करो, या थोड़ा सा बैठ के 4-5 किलोमीटर वॉक करो। क्यों? क्योंकि उसका मसल जकड़ नहीं जाना चाहिए। हम जो हिंदी में बोलते हैं, मसल जकड़ नहीं जाना चाहिए। इसको फिटनेस दे दिया आपने, सब कुछ दे दिया, रोज इतना काम कर रहा है, फिर आप बोलोगे अभी 10 दिन मैंने तो उसको अंदर ही रखा। नो, उसको 10 दिन आपको हैंड वॉक या ये वॉक लेना ही पड़ेगा, तो ही घोड़ा को मसल जकड़ नहीं जाएगा। अगर मसल जकड़ गया तो भी वो आपको फेल करेगा इवेंट में। तो ये बात हो गई वर्कआउट की। लॉग बुक, पहला दिन से लास्ट दिन तक आपका लॉग बुक रहना चाहिए आपको। आप सुबह राइड पे निकले, कितना बजे निकले, कितने बजे आए, कितना किलोमीटर किया, उसमें ट्रॉट कितना हुआ, कैंटर कितना हुआ। एक एक ऐप है, सॉरी अभी नाम नहीं याद आ रहा है, मैं डालूंगा ग्रुप पे। वो ऐप डालो, आपको पूरा राइडिंग का प्रोसेस मिल जाएगा। कितना किलोमीटर आपने राइड किया, एवरेज स्पीड क्या था, ट्रॉट क्या था, वॉक क्या था, वो पूरा लॉग आउट होना चाहिए। जाने के पहले घोड़े का हार्ट रेट लेना चाहिए, जाने आने के बाद में घोड़े का हार्ट रेट लेना चाहिए। ये स्टडी आप करो। आपका लॉग बुक 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद में घर में लो, खाना खाने के बाद में मोबाइल मत देखो, फेसबुक मत देखो, नेटफ्लिक्स मत देखो, आपका लॉग बुक स्टडी करो कि मेरा घोड़ा कैसा पैटर्न कर रहा है 10 दिन में, इसका कौन सा राइड पे हार्ट रेट बेटर आया, कौन सा राइड पे हार्ट रेट खराब आया, क्यों मेरा घोड़े का ये रिजल्ट डाउन हुआ या अप हुआ। ये आपको स्टडी करना है, आपको अपना घोड़ा इन एंड आउट समझना चाहिए। उसके बाद में वेट गेट। अभी फिटनेस में वेट गेट का क्या बात आ गई? फिटनेस में वेट गेट क्यों लिखा है? गलती से टाइप हो गया? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े को हर टाइम आप लेके आते हो, उसको पूरा वेट गेट का इफेक्ट आपको देने का है। दैट इज मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो फिटनेस। वो आने के बाद में आपने सैडल निकाला, सैडल के बाद में पैर चेक किए, पैर चेक करने के बाद में उसके ऊपर पानी डाला, उसको यूज टू होना चाहिए। हार्ट रेट लिया, ट्रॉट किया, ट्रॉट के बाद में आके खड़ा रहा, डॉक्टर उसको टेस्ट करता है। ये सब जो प्रोसेस वेट गेट में होता है, वो आप डेली आपको करना है। 3 मिनट लगता है, 2.5 से 3 मिनट लगता है। आप 1 घंटा राइडिंग किया, 1.5 घंटा राइडिंग किया, तो 3 मिनट आप दे सकते हो घोड़े को। वो 3 मिनट आप जो वेट गेट में उसको रोज प्रैक्टिस देते हो, वो उसका मेंटल फिटनेस होता है। फिर कैसा भी वेट खड़ा रहेगा, कोई वेट रफ होता है, कोई वेट टफ होता है, कोई वेट वेट खुद कभी धरा हुआ रहता है, तो अपना घोड़ा डरेगा नहीं। तो अगर वेट गेट में घोड़ा आपका सही नहीं बैठा, तो आप क्या इवेंट करोगे? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल फिटनेस ऑफ द हॉर्स ऑल्सो। यहाँ पे मेंटल फिटनेस, आज अभी तक वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट मसल फिटनेस,
ये मेंटल फिटनेस आ गया कि उसको समझना चाहिए कि हाँ ये 10 बाजू मेरे को हाथ लगाने का है, घोड़ा प्रेम से खड़ा रहे, हाँ हाथ लगाओ, जो करना है करो, ये तो रोज होता है। वो सडनली आप उसको वेट गेट में लेके जाओगे, घोड़ा गबड़ जाता है। सो एक एंड्योरेंस का घोड़े को ये पूरा रोज का प्रैक्टिस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिटनेस का प्रोग्राम हुआ, यहाँ तक जो मेरे को समझ पड़ा, ये बेसिक अपन ले रहे हैं सब पॉइंट्स, ये फिटनेस प्रोग्राम रहेगा। अभी क्लियर? एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। हेलो या टेल मी प्लीज। सर, घोड़े का हार्ट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? मतलब ये नया टर्म हमने सुना है, मतलब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आगे आएगा नेक्स्ट में। घोड़े का हार्ट रेट एक तो आप स्टेथोस्कोप लेके लगा के दे सकते हो, या दूसरा हैंड हेल्ड हार्ट रेट मॉनिटर्स आते हैं। ऐसा मॉनिटर आता है, आप खाली घोड़े को उधर लगा दो, ऑन करो तो आपका हार्ट रेट दिखाता है। और राइडिंग के अंदर भी आता है, उसके बारे में नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, जिसमें मैं हार्ट रेट का बात करूंगा, हार्ट रेट मॉनिटर और सबका बात करूंगा। आई कवर दैट एरिया in a smaller form, but I'll cover that area. थैंक यू। Okay, I'll do that. So can we go to the next one? Any other questions? No questions, sir. Would you like a 2 minutes break, hydration break? No, I'm okay. I mean, if anybody wants a break, or let's just run to the loo and come back in 2 minutes. Yeah, I mean, you're just speaking for a long time continuously, so I just wanted you to take some. No, I'll just take a 2 minute washroom break and come back. Meanwhile, you all Okay. can chat. Put down any questions. I'll come back. Okay, right. Thanks, sir. We'll wait for you. Thank you. So I think अभी तक, yeah. So अभी ये सवाल आ गया, स्ट्रेटजी क्या करेंगे। इसमें जो मैंने फ्रेज डाला है, ऑल बुल्स एंड नो ब्रेन्स, इसका जो मतलब होता है कि खाली बलवानगिरी करने का और दिमाग नहीं लगाने का। अगर आप खाली हीरोगिरी करोगे, बलवानगिरी करोगे और अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने इतना सब मेहनत किया है, सही घोड़ा सिलेक्ट किया है, सही सैडल सिलेक्ट किया है, सही सैडल बनाया है, सही सैडल पैड लगाया, और घोड़े का टेम्परामेंट देखा, अपने आप को तैयार किया, घोड़े को तैयार किया, और फिर आप आके खाली सोचोगे कि मैं खाली ऐसा हीरोगिरी करके निकल जाऊंगा, वो नहीं चलने वाला है। हीरो को भी दिमाग लगाना पड़ता है, हीरो को भी हीरो बनने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है, इसके ऊपर अभी अपन बात करेंगे। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या अभी यहाँ पे बात है, रेकी द ट्रैक, डोंट फूल अराउंड। तो जब आपको ट्रैक दिखाने के लिए आपका ओसी लेके जाते हैं, ओसी इज दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। आजकल कोई ओसी लेके जाता है या कोई ओसी आपको मैप दे देता है, बोलता है आप जाके ट्रैक देख के आओ। 70 से 90% टाइम मैंने देखा है, सब लोग खाली मस्ती करते हैं, सब लोग खाली टाइम पास करते हैं, और ऐसा लगता है कि बस घूमने को निकले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वन ऑफ द, ऐसा मैं तो सब चीज बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है कि आपको जब आपको 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, जो भी आपको ट्रैक दिखा रहा है, या आप जाके खुद देखते हो, आपको स्टडी करते रहना है कि ये ग्राउंड खराब है, ये ग्राउंड खराब है, यहाँ पे मैं वॉक करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रॉट नहीं करूंगा, ये ग्राउंड अच्छा है, यहाँ पे ट्रॉट अच्छा होएगा, ये लंबा लंबा पैच है, यहाँ पे मैं ट्रॉट करूंगा, घोड़े को वार्म अप होने दूंगा, फिर ये ट्रॉट तो बहुत खराब है, वापिस मैं यहाँ वॉक ले लूंगा, और ये ट्रॉट ये एरिया अच्छा है, यहाँ पे मैं कैंटर करके अपना स्पीड बढ़ाऊंगा, जो मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए। आते वक्त में क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, वहां पे क्या करूंगा, ये सब चीज आपको ट्रैक जब आप देखते हो, आपको सोचते रहना चाहिए, और आपका ट्रैकर ऑन होना चाहिए। आप देखो कि भाई ये 2 किलोमीटर का पैच मेरे को वॉक ही करना पड़ेगा, ये 4 किलोमीटर जहां पे मैं ट्रॉट कर सकता हूँ या मैं कैंटर भी ले सकता हूँ, तो ये 4 किलोमीटर में मैं ये स्पीड पे जाऊंगा, ये 2 किलोमीटर पे मैं वॉक करूंगा, ये करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रॉट करूंगा नहीं, यहाँ पे वॉक शायद करना पड़ेगा, देखूंगा क्या होएगा। ये सब आप जब कैलकुलेट करोगे, तो आप अपना अपना सोच कर सकोगे। अभी बहुत टाइम क्या होता है, आप वो नहीं करोगे, आप चालू कर दोगे, लगेगा अरे अरे मालूम नहीं आगे क्या आएगा, ट्रैक क्या आएगा,
खराब पैच पे भी ट्रॉट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। आप खराब पैच पे ट्रॉट कर लोगे, आपको मालूम ही नहीं कि आगे बहुत अच्छा पैच आने वाला है, बहुत बढ़िया पैच आने वाला है, आप कैंटर भी उठा सकोगे लंबा। तो आप खराब ट्रैक पे घोड़े को लेम करने का चांसेस आपका बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ट्रैक दिखाते हैं, सब लोग क्या आ रहे हैं, वो क्या मस्ती करते रहते हैं, ये वो, ठीक है। हम लोग आए हैं मजा लेने के लिए, हम लोग आए हैं सबको मिलने के लिए, अच्छा करने के लिए। लेकिन जब जो चीज देखना है और जब जो चीज करना है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो टाइम पे मस्ती छोड़ के आप अपना ट्रैक को स्टडी करो कि कहाँ पे मैं क्या कर सकूंगा। वाटर पॉइंट्स है, वाटर पॉइंट्स चेक करो। सो दिस, ये अगर आपने नहीं किया तो आप ऐसा ही समझो कि घोड़ा, आप इवेंट से उछल गए। जैसा घोड़ा बक मार के आपको नीचे फेंकता है, वैसा इवेंट ने आपको बक मार के नीचे फेंक दिया। उसकी तैयारी रखो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर ही दोगे, और वो मिस्टेक पकड़ा जाएगा। मिस्टेक पकड़ा जाएगा बोलेगा तो घोड़ा लेम हो जाएगा, डिहाइड्रेट, कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। या तो आप जल्दी आ जाओगे, या तो आप लेट आ जाओगे। फिर आपको आपको लगा कि अरे अभी मैं स्लो करना है, तो आप लेट आ जाओगे। आप बहुत बहुत फास्ट चले गए तो आप शायद जल्दी आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक पकड़ा जाएगा। तो जैसा घोड़ा बक करके आपको फेंकता है, तो ये इवेंट आपको बक करके फेंक देगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये लगभग मैंने क्लियर किया पहला पॉइंट में। तो चेक द सरफेस, ये जो पहला पॉइंट में ये क्लियर किया मैंने। सरफेस चेक करके डिसाइड करो कहाँ कहाँ पे मैं वॉक करूंगा, कहाँ कहाँ पे मैं ट्रॉट करूंगा। सेम पॉइंट, सॉरी आई क्लियर इन द फर्स्ट वन। थर्ड पॉइंट, वाटर पॉइंट चेक करो कि भाई वाटर पॉइंट चार बाजू रहेंगी, लेकिन जब भी वॉक ही किया तो मैं वाटर क्या घोड़ा पिएगा, उसको जरूरत ही नहीं। लेकिन ये कैंटर के बाद में मेरे को यहाँ पे उसको पानी दिखाना ही है। ये ट्रॉट के बाद में मेरे को ये पानी दिखाना है, मेरा घोड़े को इतना इतना कैंटर के बाद में पानी का जरूरत पड़ता है, वो आपको समझना चाहिए और वो पानी दिखाना चाहिए। तो आपको अभी आप उसके पे ध्यान नहीं करोगे, आपको लगेगा आगे वाटर पॉइंट आ रहा है, लेकिन अगर वाटर पॉइंट आएगा ही नहीं, आप घोड़े को डिहाइड्रेट करके अंदर लेके जाओगे। आपको अगर आपने डिसाइड किया कि अभी अभी समझो लास्ट वाटर पॉइंट आपका 14 किलोमीटर पे आया, और आपको वो ध्यान नहीं रहा, आपने वहां वाटर पॉइंट नहीं पिलाया, आपको लगा आगे होएगा, तो आपने 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर विदाउट वाटर चलाया, तो घोड़ा डिहाइड्रेट होने का चांस होएगा। तो वाटर पॉइंट कहाँ पे है, मैं कहाँ कहाँ दिखाऊंगा, क्या करूंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आदमी स्किप कर जाता है, मस्ती में ध्यान नहीं करता, स्किप कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी ये आपने चेकिंग कर लिया, पूरा कर दिया। शाम को ब्रीफिंग के बाद, रात को आप खाना खाने के बाद जब बैठ रहे हो, तभी आपको आपका पूरा राइड मेमोराइज करने का है, जहां तक हो सके। कि हाँ, ये स्टार्टिंग में ऐसा था, ओपन था, मैं ये करना चाह रहा हूँ, उधर ये था, मैं स्लो हो जाऊंगा, यहाँ पे मैं ये करूंगा। यहाँ एक एक पूरा राइड आपका मेमोराइज आप माइंड में करो। एक एवरेज निकालो कि हाँ भाई, ये होने से मेरा ये एवरेज आएगा, मैं 12 या 14 के बीच में आऊंगा। अरे वो आगे भाग जाएगा, वो पीछे भाग जाएगा, वो मत सोचो। आप अपना राइड प्लान करो और उसके ऊपर चलो। तो ये नाइट बिफोर द राइड आपको ये होमवर्क करना है। आप अगर ये होमवर्क करोगे तो आपका राइड अच्छा जाएगा, आप और मजा ले पाओगे, आप और खुशी रहोगे, आपका रिजल्ट बेटर आएगा। आप फर्स्ट आए, सेकंड आए या फिफ्थ आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट है आप पास हुए, आपने मजा किया, घोड़ा सेफ आया, आप सेफ आए। उसके बाद में कहीं नंबर आपका लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर आप कोई अपनी जान को रिस्क करोगे या घोड़े की जान को रिस्क करोगे, इज वेरी डेंजरस। आप प्लान करो अपना राइड, आपको क्या राइड से चाहिए और वैसा राइड करो, वो रात को होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट भी मैंने पहले अभी इसके साथ ही कवर किया। तो यू कैन प्रॉपरली कैलकुलेट द एरियाज ऑफ स्पीड एंड प्लान योर राइड। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ ये करके, और आप एक्चुअली बोल सकते हो कि ये ट्रैक डिफिकल्ट है, इसके ऊपर मैं 12 पे ही ला सकूंगा, ये ट्रैक इजी है, यहाँ पे मैं 16-17 पे भी पहुंच पाऊंगा। आप इजीली ट्रैक कर सकते हो ये कैलकुलेशन। और इसमें अभी सब एप्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, और आप थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे तो आप अपने आप से एक्सपीरियंस से भी समझ जाओगे। तो ये कैलकुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तब आपका राइड अच्छा रहेगा, आप मजा ले पाओगे, आप हैप्पी रहोगे। अल्टीमेटली वी हैव टू बी हैप्पी, अपन हैप्पी होना चाहिए, घोड़ा हैप्पी होना चाहिए, अच्छा राइड होके घोड़ा सेफ घर जाए, अपन सब घर जाए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी आपने ट्रैकिंग कर दिया, रेकी कर दिया, वाटर पॉइंट्स देख लिया, उसके बाद में एक फ्रेज है,
ये फ्रेज एंड्योरेंस में, प्लान योर राइड, राइड योर प्लान। जैसा आपने अभी रात को बैठ के पूरा राइड प्लान किया, लेकिन अगले दिन सुबह कोई बाजू में से भागा, वो कंट्रोल छूट जाता है और आप उसके पीछे भागते हो, वहां पे गलती होती है। तो आई अगेन रिपीट, प्लान योर राइड, अपना राइड को प्लान करो और अगले दिन जो प्लान किया है उसके ऊपर अमल करो। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान योर राइड, राइड योर प्लान। वो हमारे से भी गलती होती है, हम लोग ने भी मिस्टेक्स की है। एक बार हमने प्लान जो किया था, हमने वो नासिक में उसका उल्टा ही कर दिया और उसके लिए जुर्माना भरना पड़ा। हम टीम इवेंट, तो 4 घोड़े में से 3 घोड़े डिस्क्वालीफाई हो गए, एक ही घोड़ा पास हो गया मेरा, वो भी नसीब से पास हो गया। सो वहां हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए और हमने कंट्रोल छोड़ दिया, जो भी प्लान किया था उसका उल्टा ही हमने राइड किया, विच वॉज वेरी सैड। जहां तक आपका, मैंने जब भी अच्छा पोजीशन लाया हूँ, अच्छा अच्छा पोजीशन में आया हूँ, मैंने प्लान किया है और वो प्लान से चला हूँ एंड आई हैव सक्सीडेड। आइडिया ऑफ सक्सेस इज, आप मिस्टेक मत करो, दूसरे को मिस्टेक करने दो, दूसरे को डिस्क्वालीफाई होने दो, आप अपने आप ऊपर चढ़ोगे। अभी जैसा हमारा अभी लास्ट राइड था, उसमें 20 किलोमीटर का जो इंट्रोडक्टरी राइड था, वहां पे मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो गेट में आया नंबर 7। जब भी उसने खत्म किया, लाइन क्रॉस किया 20 किलोमीटर का, तो 60वां था, लेकिन उसका पोजीशन 3rd आ गया, क्योंकि वेट गेट में 4 जन उड़ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि मैं वेट गेट में मैं 2 नंबर पे लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। लाइन क्रॉस करना और एंड्योरेंस जीतना 2 अलग बात है। आप लाइन 11वां भी क्रॉस करके आप 2 नंबर पे आ सकते हो, क्योंकि आपके आगे वाले सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर उसने गलत चलाया। तो आप अपना सही राइडिंग करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना गलत राइडिंग मत करो, आप अपना सही राइड पर रखो, सही राइडिंग करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वही सेम चीज के रोड, एक तो आपने देख लिया वॉक ट्रॉट कैंटर का मेरा क्या स्कोप है। जो रफ पैचेस है, अभी घोड़ा घोड़ा लेम कैसा होगा? घोड़ा 2 तरीके से लेम होगा। वन, उसको मसल पुल हो गया तो लेम दिखाएगा, और सेकंड, एक खराब सा स्टोन आ गया, एक खराब सा खड्डा हो गया जिसमें आपका घोड़ा लेम हो जाएगा। जो 80 किलोमीटर में मैं था, आई वॉज क्लॉकिंग अबाउट 14.5 15 किलोमीटर्स, जहां पे 60 किलोमीटर पे मेरा घोड़ा डिस्क्वालीफाई हो गया। मेरा रेन लूज था और घोड़े घोड़ा ट्रिप हुआ, उसमें रेन लूज होने से घोड़ा भी बहुत काफी मिनी अच्छा सा नीचे बेंड हो गया। अभी अगर मैंने रेन टाइट रखा था, घोड़ा थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो जो ट्रिप हुआ, वहां पे मेरा नेशनल मेडल गया और 60 किलोमीटर पे मेरा घोड़ा वॉज डिस्क्वालीफाइड। सो एक रॉन्ग स्टोन या एक रॉन्ग खड्डा आपका इवेंट खत्म कर सकता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये एरियाज में मैं ये करूंगा और ये कोशिश करूंगा। आपका, मैं वापिस बोलता हूं, आपका घोड़ा 2 रीत से लेम हो सकता है। एक, कि वो मसल पुल हो गया है, वो अगर आपने फिटनेस अच्छा किया है तो 99% वो मसल पुल होने का चांस नहीं रहेगा। आपने पानी पिलाया, डिहाइड्रेट होकर मसल पुल नहीं होगा। दूसरा होता है कि एक गलत खड्डा, एक गलत होल या एक गलत पत्थर पे आपका पैर गिर गया, वो आपका बैड डे है, आपको उसका जुर्माना बनना पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो ये आपका प्लानिंग और स्ट्रेटजी का पूरा थॉट प्रोसेस है। ये आपको जाना है इसके थ्रू और आपका अच्छा राइड करना है। दिस इज ओवर फॉर द स्ट्रेटजी। एनी क्वेश्चंस एट ये पॉइंट पे, या बाद में भी ले सकते हैं क्वेश्चंस? Sir, I don't think we have any question. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेट गेट। अभी वेट गेट का ये बोला जाता है कि इवेंट इज वन एट द वेट गेट ओनली। आपका इवेंट आप जीतोगे वेट गेट के ऊपर ही। वेट गेट के ऊपर आपका क्या प्रदर्शन रहा, उसके ऊपर ही आप जीतने वाले हो। राइडिंग तो आपने कर लिया, लेकिन वेट गेट के अंदर अगर आप सही नहीं बैठे तो आपका कोई चांस नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला ना, जो आदमी छठा आया था, छठा या 60वां क्रॉस किया उसने लाइन, लेकिन वो 3rd प्लेस पे आ गया, क्योंकि वेट गेट में उसने सही किया और कोई कोई आदमी ने गलत किया। तो अभी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द वेट गेट। Can we have the next slide?
स्लो डाउन ऑन द लास्ट 2 किलोमीटर्स। अभी हर राइडर का अपना प्लानिंग होता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूं कि आप जल्दी भगा के आगे, आप जल्दी भगा के आगे और फिर आपने 9 मिनट लिया घोड़े को कूल डाउन करने के लिए, या आप लास्ट 2 किलोमीटर स्लो डाउन हुए और आपने 2 मिनट लिया घोड़े को कूल डाउन करने के लिए। ये प्लान आपको करना है, आपको अपना घोड़ा समझना चाहिए। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, जब भी उसको फिटनेस के अंदर जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो वर्कआउट करते हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक दिन फास्ट आना है, एक दिन फास्ट आके आपको हार्ट रेट चेक करना है, कितनी जल्दी हार्ट रेट आता है, एक दिन स्लो आना है, एक दिन मीडियम आना है। आपको अपना ऑप्शंस ट्राई करना है। कोई घोड़े ऐसे है कि हमारे ग्रुप में घोड़े ऐसे फास्ट भी आते हैं, स्लो भी आते हैं, लेकिन 9 मिनट पे ही उसका हार्ट रेट आता है। तो वो भगा के आता है क्योंकि उसको मालूम है कि 9 मिनट पे ही आने वाला है, मेरा टाइम वेट गेट में जाने वाला है, तो वो फुल कैंटर करके गेट के अंदर आता है। मेरा ये प्रैक्टिस है कि मैं लास्ट 2 किलोमीटर स्लो डाउन करता हूं, तो मेरे को 1.5-2 मिनट में हार्ट रेट मेरा आ जाता है। तो घोड़े के ऊपर भी डिपेंड होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, घोड़े के ऊपर और उसका ट्रेनिंग के ऊपर। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूं। और जहां तक हर घोड़ा आप अगर अगर पहले ही कूल डाउन करके ऑन द राइड ही कूल डाउन करके लाओगे तो आपका वेट गेट में टाइम बचेगा। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। तो वो पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, अभी बहुत टाइम बहुत जन मैंने देखा है घोड़ा अंदर आने के बाद में हाय 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 चिल्ला चिल्ली, वो बाप कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, साइज कुछ बोलता है, राइडर कुछ बोलता है। आप इतना पैनिक सिचुएशन कर देते हो, आप इतना पैनिक सिचुएशन कर देते हो, तो वो घोड़ा भी पैनिक मोड में आ जाता है। फिर आप बोलोगे हार्ट रेट, प्रैक्टिस में हार्ट रेट 4 मिनट में आया था, यहाँ पे 7 मिनट लगा। अरे लेकिन आप वो घोड़ा, ठीक, घोड़ा इज अ वेरी सेंसिटिव आदमी। आप इतना इतना बड़ा जानवर के ऊपर एक मक्खी बैठता है तो वो अपनी पूंछ से उसको हिलाता है, मीनिंग वो इतना सेंसिटिव जानवर है, उसका सेंसिटिविटी अपने से ज्यादा है। आप अंदर वो प्रैक्टिस के टाइम पे काम रहोगे और इसके टाइम पे वो चिल्ला चिल्ली जल्दी कर पानी डाल, ये कर ये कर ये कर, घोड़ा का हार्ट रेट अपने आप 3-4 मिनट ऊपर चले जाएगा। सो बी काम, पेशेंट रहो, सैडल निकालो, पेशेंट रहो, आवाज कम करो, शांति से काम करो। उतना गोरा शांत रहेगा उतना जल्दी आपका हार्ट रेट आएगा। ये हमारा सोच है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके बाद में आप वेट गेट के अंदर आ गए, शांति से आओ, शांति से सैडल निकालो, उसके पैर चेक कर लो, उसको पानी दिखाओ। पानी दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसको पानी दिखाओ, उसको डिसाइड करने दो उसको पीना है कि नहीं पीना है। और अगर आप स्टडी करोगे प्रैक्टिस में, अगर आप घोड़े के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े रहोगे, जहां पे हमेशा मोस्टली वी गेट डाउन एट द लेफ्ट हैंड साइड, आप गले के ऊपर जो एक जारा नव जाता है उसके अंदर आप एग्जैक्टली चेक करोगे कितना गल पानी पी रहा है घोड़ा। आप नोटिस करो, वो गले के अंदर आपको दिखेगा। आपको प्रैक्टिस में देखना है कि मेरा घोड़ा 10 घोट पानी पीता है। और अगर अगर फाइनल डे पे उसने 2 घोट पिया या 15 घोट पिया या 18 घोट पिया, घोट मीनिंग गल्पिंग, वन सिप, तो आपको भी वो जजमेंट होना चाहिए कि नहीं मेरा घोड़ा आज सही नहीं चल रहा है, मेरा घोड़ा ने 2 ही घोट पिया, वो एग्जॉस्टेड है। आप एकदम थक जाओगे तो आप ताबड़तोड़ पानी नहीं पी पाओगे, या आप एकदम डिहाइड्रेट हो जाओगे तो आप दो बॉटल पियोगे। तो ये साइंस भी आपको समझने के लिए कि अगला राउंड मेरे को घोड़ा कैसा चलाना है, मेरा घोड़ा नॉर्मल है या मेरा घोड़ा एकदम थक गया है या मेरा घोड़ा नहीं समझ पा रहा है क्या हो रहा है। तो पानी पीने का टाइम पे ध्यान रखो, पानी पीने का टाइम पे ये वो आंटी के साथ बात मत करो, अंकल के फोटो लेने को मत बोलो। घोड़ा कितना घोट पानी पी रहा है उसका प्रैक्टिस रखो, ध्यान करो। इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में आपको अगर पानी डालना है तो डालो। बहुत घोड़े बिना पानी भी हार्ट रेट आ जाता है। हाँ, आपने विदाउट प्रैक्टिस, अगर फिटनेस बराबर है, आपने टॉप लेवल फिटनेस किया है, आपका घोड़े का हार्ट रेट 1.5-2 मिनट के अंदर नॉर्मली आ जाएगा बिना पानी। ये पानी का फ्रस्ट्रेशन और ये सब फ्रस्ट्रेशन तब बढ़ता है जब घोड़े को वी हैव नॉट ट्रेन देम दैट वेल। और ऑफ कोर्स ट्रेन होने के बाद में भी 2 मिनट के बदले में 1 मिनट आया तो आप 1 मिनट जल्दी पहुंचोगे, तो एक प्रैक्टिस हो गया कि पानी डालने का।
लेकिन ये पानी डालने का प्रैक्टिस आपका प्रैक्टिस में भी होना चाहिए, आपका डेली प्रोसीजर में होना चाहिए। नहीं तो घोड़ा वापस क्या होता है, आप घोड़े को अंदर लेके आए, सैडल उतार दिया, पैर देख लिए, पैर साफ कर दिए, आपने हार्ट रेट ले लिया, हार्ट रेट आ गया बराबर या नहीं आया बराबर, आपने पानी डाला, तो पानी अगर आप सरप्राइजिंगली डालते हो, घोड़े को प्रैक्टिस नहीं है, तो वो नेगेटिव भी होता है कि उसका हार्ट रेट ऊपर जाता है। सो पानी डालने का प्रैक्टिस प्लीज कंटिन्यूअस रखो। और पानी नर्व्स के ऊपर जाना चाहिए। अपन पानी क्यों डाल रहे हैं, हार्ट रेट नीचे लाने के लिए। पानी जहां जहां नर्व्स है वहां डालो, मसल एरिया पे कम पानी डालो, क्योंकि मसल एरिया पे मसल पुल होने के चांसेस रहते हैं। घोड़े घोड़े के ऊपर डिपेंड है, हर घोड़ा अपना अलग होता है, लेकिन मसल एरिया पे पानी कम डालो, जहां पे नर्व्स है वहां पे पानी डालो, और देखो कि उसका हार्ट रेट नीचे आता है, आपको बेनिफिट होता है तो ही डालो। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आया हार्ट रेट। ओके, सो हार्ट रेट आपको चेक करने के तीन तीन तरीके हैं। एक, आप उतर जाओ और एक स्टेथोस्कोप ले, स्टेथोस्कोप लेके 15 सेकंड गिनो, और स्टेथोस्कोप आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी ये आदमी का जहाँ हार्ट है, लोअर लेफ्ट हार्ट है, वहां पे उसका हार्ट रहता है, वहां पे आप स्टेथोस्कोप थोड़ा सा ऊपर वहां पे आप लगाओ, और अपना वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैं भी अभी तक उतना उसमें चैंपियन नहीं हुआ हूँ, तो वो ज्यादा करके वेट को समझता है, या एकदम 10 12 15 साल का प्रैक्टिस के बाद में किसी को समझता है। उसके बाद में देर आर हैंड हेल्ड मॉनिटर्स। हार्ट रेट मॉनिटर हैंड हेल्ड है, हैदराबाद में एक कंपनी बनाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है, 16 या 18 हजार रुपए का आता है। वो आप उधर खाली पकड़ लो और आप स्विच ऑन करो, वो अपने आप गिन के आपको हार्ट रेट दिखा देता है, 56 65 86 89। वो हैंड हेल्ड है, वो हम लोग मेनली वापरते हैं। वो हैंडल उधर लाके पकड़ देने का, आपको हार्ट रेट दिख जाएगा। अभी ये जो तीसरा पॉइंट है, राइडिंग के टाइम पे भी आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो। वो कैसा है, ये बेल्ट के अंदर उसका उसका सेंसर रहता है, और आपके घड़ी के अंदर वो सेंसर रहता है। तो राइडिंग के टाइम पे भी आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो। तो देर आर तीन टाइप से आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो। एक, आप स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हो, दूसरा हैंडल जो आप उतरने के बाद में लगा के चेक कर सकते हो, और तीसरा आपका मोबाइल के अंदर आपका रिस्ट वॉच के अंदर वो दिखाएगा, वो स्पेशल रिस्ट वॉच आता है, आप उसका उसका जो सेंसर है वो उधर लगा दो बेल्ट के अंदर, राइडिंग के टाइम पे भी आपको हार्ट रेट मॉनिटर दिखाएगा। अभी ये मेरा प्रैक्टिस है, राइडिंग के टाइम पे जो दिखाता है वो हम लोग प्रैक्टिस में वापरते हैं, समझने के लिए कि हाँ, आज घोड़े को मैंने इतना फास्ट भगाया तो ये हार्ट रेट आया, कल इतना स्लो भगाया तो ये हार्ट रेट आया। बाकी नॉर्मली अगर आपने सही प्रैक्टिस किया, सही ये किया है, तो आपको अपना घोड़े का हार्ट रेट का अंदाज रहेगा ही, कि अगर मैं घोड़े को ये स्पीड से लेके गया तो ये मेरा हार्ट रेट आना है। दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिस रीत से आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो। हैव आई आंसर दैट क्वेश्चन, जिस जो हार्ट रेट का पूछ रहा था, वो सवाल का जवाब मिला है आपको, या और कोई क्वेश्चन आप पूछिए मेरे को? नहीं सर, मिल गया सॉरी, सर। ओके ओके। मिल गया फिर सर। उसके बाद में आता है, जैसा कोई कोई हूफ्स पहले चेक करता है, कोई पैर पहले चेक करता है। आप पैर चेक कर लो, हूफ्स चेक कर लो, कहीं पे अंदर पत्थर नहीं है, कहीं पे अंदर कुछ लगा नहीं है, कहीं पे उसका कटा नहीं है। अगर कटा है तो उसको साफ करके लेके जाओ, और बाद में उसको छोटा सा बाजू में अपना जहाँ पे गेट रहता है वहां पे छोटा सा ट्रॉट करके देख लो घोड़ा लेम नहीं है। अगर लेम है तो उसको आइस लगाना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। और आप फिर वेट सब, अगर ये सब पैरामीटर्स क्लियर, आपके हार्ट रेट क्लियर है, डिहाइड्रेशन क्लियर है, आपके पैर सही है, आप घोड़े को प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाओ वेट के पास। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घोड़े को वेट के पास लेके जाना पड़ेगा। सो एक बार ये सब ओके हो गया, कामली उसमें भी बुआ बुम मत करो, ये मत करो, कामली घोड़े को अंदर लेके जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप काम एंड कैरी ऑन, ये यूके का फ्रेज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ बराबर करोगे और फिर चिल्लाने का चालू करो, चलो चलो चला चलो, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, वो घोड़ा अपने आप सोचता है क्या हो गया, पीछे कोई जानवर आ गया, कचरा आ गया, क्या हो रहा है, तो अपने आप से घोड़े का हार्ट रेट ऊपर चले जाएगा। कोई आदमी बोलता है मैंने इधर हार्ट रेट बराबर किया, उधर जाके घोड़े का हार्ट रेट ऊपर आ गया। अरे पर यार, आप ये चीज मत करो ना, आप घोड़े को पैनिक मोड में मत डालो, एकदम कामली वेट गेट में काम करो, एकदम पेशेंटली। अपना काम हो गया, पैर सही है, डिहाइड्रेशन सही है, हार्ट रेट सही है, एकदम प्रेम से चल के घोड़ा ले जाके वेट के सामने खड़ा कर दो। नेक्स्ट पॉइंट। अभी वेट गेट में क्या आएगा, वेट गेट में टिपिकली पहले वेट आपका हार्ट रेट चेक करेगा, घोड़े का, आपका नहीं, घोड़े का हार्ट रेट चेक करेगा।
यहाँ पे सब चीज घोड़े के ऊपर है। आपका हार्ट रेट ऊपर हो नीचे हो किसी को कोई संबंध नहीं है। अपना प्रोटेक्शन घोड़ा है। घोड़ा एक जानवर है जो बोल नहीं सकता है, तो वेट को उसको संभालना है, तो उसका हार्ट रेट चेक करेगा। अगर हार्ट रेट आपका 64 के ऊपर है तो वेट को लगेगा कि नहीं ये घोड़ा रेडी नहीं है, उसने जरूरत से ज्यादा काम किया है, वो आपके घोड़े को डिस्क्वालीफाई करेगा। अगर हार्ट रेट सही आ गया तो वो डिहाइड्रेशन देखेगा, गट साउंड देखेगा, आंख के अंदर फिलामेंट देखेगा। ये सब चीज देखने के बाद में अगर घोड़ा सही है तो आपको बोलेगा ट्रॉट करो। ट्रॉट करते वक्त ये बेस्ट ऑफ द पिक्चर्स नहीं है। ट्रॉट करते वक्त आपका राइट साइड का लगाम लूज होना चाहिए, लगाम लूज रहना चाहिए। आप घोड़े को ट्रॉट करो, घोड़ा भी अच्छा ट्रॉट कर पाएगा। और जब आप यू टर्न मारते हो, ऑन द यू टर्न मेक श्योर यू आर ऑन द आउटसाइड। आपको बाहर रहना है। बाहर क्यों रहना है? क्योंकि वेट को पूरा घोड़ा दिखना चाहिए। अगर आप अंदर रहोगे तो आप दिखोगे और घोड़ा नहीं दिखेगा। फिर वेट ने गलत डिसीजन ले लिया तो आप बोलोगे वेट ने मेरे को ना इंसाफी किया। आपको घोड़े के बाहर रहना चाहिए जब आप यू टर्न मारते हो, और बाद में ट्रॉट करके होपफुली आपका घोड़ा पास हो जाए तो आप सेकेंड राउंड के लिए तैयार होएंगे। अभी ये जैसे पहले भी बोला गया, वेट गेट का पूरा प्रोसीजर अपने प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका घोड़ा वो प्रैक्टिस में उसको रोज ये आना चाहिए। तो वेट गेट में वो नाचेगा नहीं, हिलेगा नहीं, वेट को सपोर्ट करेगा, एक काम कंपोज घोड़ा होगा। तो वेट भी कामली कंपोजली करेगा। एक घोड़े का भी जो हाव भाव है उससे भी वेट जज करेगा कि नहीं भाई घोड़ा सही है, और वेट घोड़ा पास करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज के ऊपर आपको ध्यान करना है। प्रैक्टिस के अंदर वेट का पूरा ये जो प्रोसीजर है आप रोज रोज करते रहो, एटलीस्ट इफ नॉट रोज, हर ऑल्टरनेट दिन करते रहो, तो घोड़ा को ये नॉर्मल लगना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वेट गेट के प्रोसीजर्स हो गए, वेट आप पास हो गए, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट फेज। ये वेट गेट का पॉइंट क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चंस? जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वेट गेट हैज टू बी प्रैक्टिस एवरी सिंगल टाइम। तो वेट गेट में आपका घोड़ा काम रहेगा, कंपोज रहेगा अपने आप। वेट भी समझता है कि घोड़ा इतना एक्सपीरियंस है, इतना काम है, इतना कंपोज है, आपका पासिंग चांसेस बहुत हाई रहता है, अच्छे रहते हैं, और आप सेफ रहते हो, वेट सेफ रहता है। वहां घोड़ा अलग किया, बक मारा, ये किया वो किया, वो नहीं होना चाहिए। एनी Uh, क्वेश्चंस ऑन दिस? I think just a point I would like to make over there कि हाँ जी। अगर आपके एरिया में या क्लब में मल्टीपल राइडर्स है जो एंड्योरेंस के लिए घोड़े तैयार कर रहे हैं, हाँ तो जी। कभी कभी एक साथ घोड़ों का एक जिस तरह से बोलते हैं कि एक झुंड बना के उनको आसपास खड़े रखना, वो सब भी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। वो काम आएगा बिकॉज जब इवेंट्स में आप जाते हैं तो वेट गेट पे बहुत सारे घोड़े होते हैं आसपास में खड़े हो, तो कौन सा घोड़ा अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो हो सकता है बाकी घोड़ों के साथ में वो ट्रेन नहीं है, तो कोई और घोड़ा कुछ बदमाशी करेगा, या स्टैलियन मेयर का अगर कोई चक्कर है तो उसमें वो हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जस्ट अगर ग्रुप में अगर आप कुछ ऐसा एक्सरसाइज कभी कभी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। यस यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है कि जैसे साहब बोल रहे हैं कि वो तो इम्पोर्टेंट ही है, वो अपना अपना ग्रुप के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नए बार के घोड़े होते हैं उसको देख के थोड़ा सा एंजाइटी होता है। लेकिन एटलीस्ट उनको ये प्रैक्टिस रहना चाहिए। सब घोड़े के साथ में बीच में जाके आके बीच से वेट गेट में से निकल गए, वो सब होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सेकंड वेट गेट के लेट गए, आपको डर लग रहा है कि वो घोड़ा उधर है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घोड़ा डर जाएगा, आप एक सेकंड लेट गए, आपका पोजीशन 2 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। आप फटाक से अंदर वेट गेट के अंदर चले गए, आपका पोजीशन सही आना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये होने के बाद में सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, बाद में आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, वेरी गुड। आप 1 2 3 पोजीशन में आ गए, वेरी गुड, यू आर लकी, यू डन अ गुड जॉब, एंड आई थिंक आपने अच्छा काम किया है। तो यहाँ तक ये आपका इवेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा, जो हमने नहीं लिखा है पहले, लेकिन ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करना चाहूंगा। आफ्टर द वेट चेक, ये वेट चेक हो जाता है, इवेंट खत्म हो जाता है, आपका इवेंट खत्म हो गया। उसमें नॉर्मली क्या होता है, आदमी बोलता है इवेंट खत्म हो गया, घोड़े को ट्रेलर में डालो लेके जाओ। नहीं, आप
आफ्टर द इवेंट आपका काम अभी भी चालू है। आफ्टर द इवेंट आपको 2-3 घंटे के बाद, हर 2-3 घंटा आपका घोड़ा देखना चाहिए। वो डिहाइड्रेट इमीडिएट नहीं होएगा, वो 2-3 घंटे के बाद डिहाइड्रेट हो सकता है। वो डिहाइड्रेट हुआ कि नहीं हुआ, उसने डेली जितना खाना खाता है उतना खाया कि कम खाना खाया। अगर उसने कम खाना खाया तो भी वो घोड़ा डिहाइड्रेट है, तो भी वो घोड़ा तकलीफ में है। आप कम खाना कब खाओगे? जब आप बीमार हो, जब आपको तकलीफ हो रही है। अगर वो कम खाना, वो दाना भी आपको उतना ही डालना है, ज्यादा भी नहीं डालना है। ज्यादा डालोगे कॉलिक होने का चांस रहेगा। रोज जितना दे तो उतना ही डालना है, और आपको देखना है कि वही स्पीड और वही कंफर्ट से उसने खाया। अगर वही स्पीड और वही कंफर्ट से उसने नहीं खाया, दैट मीन्स घोड़ा कहीं, भले घोड़े ने इवेंट कर दिया, भले घोड़े सेकेंड पोजीशन आया, फर्स्ट पोजीशन आया, या डिस्क्वालीफाई हो गया, अगर घोड़े को कोई तकलीफ है, ऑफकोर्स डिस्क्वालीफाई घोड़े को तो ज्यादा आपको संभालना है। डिस्क्वालीफाई भी होता है तो आप अपने अपने वेट को पूछो कि सर क्यों आपने डिस्क्वालीफाई किया। अगर उसने बोला लेम के लिए डिस्क्वालीफाई किया, हार्ट रेट के लिए किया, गट साउंड के लिए किया, अगर गट साउंड बराबर नहीं है तो आपका कॉलिक का चांसेस है। आप पूछो, वेट बोलेगा व्हाई यू वांट टू नो, उसको बोलो कि मेरे को खाली घोड़े पे ध्यान रखने के लिए करना है, मेरे को ये नहीं जानना है आपने आपने गलत किया या सही किया, मेरे को खाली किस चीज पे मेरे घोड़े पे ध्यान रखो। क्योंकि एक स्पोर्ट्स हॉर्स को बनाने को, फ्रॉम द स्टार्टिंग करेक्ट जानवर सिलेक्ट करो, करेक्ट प्रैक्टिस करो, करेक्ट टीचिंग करो, करेक्ट सैडल करो, अपने आप को तैयार करो, सब तैयार करने के बाद में एक स्पोर्ट्स हॉर्स को तैयार करने के बाद में, अगर इवेंट के बाद में घोड़े को कुछ हो गया और वो लाइफ लॉन्ग लेम हो गया या कॉलिक हो गया या कुछ डिहाइड्रेशन आपने चेक नहीं किया और घोड़ा गुजर गया, तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन चेक करो, पैर चेक करो, वापिस हर 2 घंटे उसको वॉक कराओ, हर 2 घंटे उसको ट्रॉक कराओ, क्योंकि 2 घंटे के बाद कैच आ सकता है, 2 घंटे के बाद पुल आ सकता है, तो आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पॉलिक हुआ कि नहीं वो चेक करो, वो खाना सही खा रहा है कि नहीं वो चेक करो, और अगले 5-7 दिन तो आपको वो घोड़े के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, ले जाने के बाद में घोड़े को 5-7 दिन हम लोग रेस्ट देते हैं, लेकिन रेस्ट के टाइम में भी हैंड वॉक तो इंपॉर्टेंट है। आप एक काम सोचो, आप अगर आपको बोला रेस्ट दो, आप 7 दिन अगर पलंग पे ही रहोगे तो आपको भी तकलीफ होएगा। सो द पॉइंट इज के रेस्ट देना है, लेकिन रेस्ट में हैंड वॉक कराना जरूरी है। घोड़ा घूमना चाहिए, घोड़ा हैंड वॉक लेना चाहिए। हैंड वॉक इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर घोड़ा, वो काम नहीं माना जाता है, वो एक्सरसाइज नहीं माना जाता है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम क्या होता है, घोड़ा जाने के बाद में बीमार पड़ता है। तो कोई आदमी बोलता है अरे मेरा इवेंट तो अच्छा हो गया, इवेंट में बीमार पड़ नहीं पड़ा, लेकिन आने के बाद में बीमार पड़ा। लेकिन ये सब छोटे छोटे साइंस देखना चाहिए, ये सब छोटे छोटे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये घोड़ा सही होएगा तो आप नेक्स्ट इवेंट में ले पाओगे घोड़ा को। अगर वो घोड़ा परमानेंटली कोई बीमारी हो गई तो नेक्स्ट इवेंट के लिए वापस नया घोड़ा ढूंढो। अल्टीमेट गोल इज के एक सही घोड़ा, एक सही पार्टनर मिलने के बाद में उसको कम से कम 10-12 साल अपन उसके साथ पार्टनरशिप करके मजा ले सकते हैं। जब मैंने बोला एक स्पॉस हॉर्स चाहिए, क्यों बोला? उसको भी मजा आना चाहिए, उसको भी मजा आना चाहिए कि मैं इवेंट में जाके आया, कुछ करके आया। आपको भी मजा आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप अच्छा रखने के लिए ये सब छोटी 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 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेरा आज का ज्ञान है, ज्ञान भी नहीं है, मेरा प्रैक्टिस है, मेरा नॉलेज है। मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, मेरे जो प्रैक्टिस है, मेरी जो सोच है, मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। इससे आप लोग को कोई बेनिफिट मिले, अच्छा सा आप घोड़े के साथ अपना जर्नी एंजॉय कर सको, तो आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस आप अभी पूछ सकते हो, या ग्रुप के ऊपर बाद में विमल जी के थ्रू से भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, विमल जी अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। किसी को भी कभी बाद में भी कोई क्वेश्चन कल भी आया तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू विमल, आई थिंक आई हैव कवर्ड व्हाट वी हैड प्लान फॉर टुडे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली ज्ञान ही है। आप लोग इस फील्ड में दिग्गज है, और आपका जितना एक्सपीरियंस हुआ है स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वर्ल्ड ओवर एक अलग कहानी है, इंडिया में एक अपना कहानी यस है। यस, इंडिया के वर्ल्ड ओवर चैलेंजेस तो बहुत बिल्कुल अलग अलग कहानी है। है। इंडिया के चैलेंजेस इतने हैं कि इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमको लगता है कि आगे आने वाले बहुत से साल लग जाएंगे सिर्फ एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए। बट मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि जब इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, तो कम से कम स्पोर्ट्स में भी हम कुछ आगे बढ़ जाए।
यस यस यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ही रहेगा, बिकॉज फिर लोग हमको, सिर्फ हमारे लोगों को वर्ल्ड ओवर सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाए कि भाई ये सही सच्चा है, ग्रूम अच्छा है, घोड़ों में काम कर लेगा। राइडर्स को भी जाना जरूरी है। जाना जाना चाहिए। एज अ हॉर्समैन जानना जरूरी है। तो हमारा टारगेट तो वही है। बट एनीवेज, वेरी गुड सेशन। प्लीज जिसको जिसको सवाल है प्लीज पूछिए सर के साथ में। यू कैन कम ऑफ म्यूट। And especially from a female participation point of view, Dipti, coming nationals 40 kilometers, you are targeting, right? So how are these sessions kind of going to help you over there? डेफिनेटली जो सर बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस है, और रियलिटी में जो हो रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और देखना अलग बात है। एंड व्हेन यू हियर इट फ्रॉम समवन, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे जो लूप होल्स है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या देखना है, पानी देना घोड़े को, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। सो फ्रॉम दीज सेशंस वी आर कमिंग टू नो द डिटेल में जो है वो समझ में आ रहा है कि क्या देखना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड फॉर तो मी, ये जो आपने बोला ना वो सही है। आप अपने प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, आप जब प्रैक्टिस करते हो, आप एक दिन पानी मत पिलाओ, एक दिन पानी पिलाओ, एंड यू सी योर हार्ट रेट। आप एक दिन कुछ करो, एक दिन कुछ मत करो, एंड सी द हार्ट रेट। आप प्रैक्टिस में ये सब कॉम्बिनेशंस करके आपको अपने घोड़े का बेस्ट कॉम्बिनेशन बिठाना है। सी एवरी एथलीट इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। तो घोड़ा भी अलग ही है। तो हर घोड़े का, अभी हमारे टीम में जैसा हमने बोला ना, एक घोड़े का हार्ट रेट 9 मिनट पे ही आता है, कुछ भी कर लो तो वो फुल फास्ट कैंटर करके अंदर जाता है, क्योंकि उसको 9 मिनट लगता है। मैं पीछे आस्ते से ट्रॉट करके आता हूँ, मैं 1.5 मिनट 2 मिनट में अंदर उसके पहले चले जाता हूँ। सो प्रैक्टिस अपने पार्टनर के साथ, जो घोड़ा अपना पार्टनर है, वो करके अलग अलग ऑप्शंस करके फिर आप करिए। जी। आपके एक पर्टिकुलर घोड़ा है, आप किस पे कर रहे हो? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस तो पूना में कर रही हूँ, पर सेमिनार्स और वर्कशॉप में जयपुर जाके अटेंड कर रही हूँ, विमल सर के यहाँ पे। गुड गुड गुड। और इवेंट में कौन सा घोड़ा लेके जाएगा? आपको अभी आइडिया है कि कोई घोड़ा मन में? एटलीस्ट 2-3 महीना पहले अगर आप उसके साथ फेमिलियर हो तो इट इज गुड। या विमल सर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। मारवाड़ी हॉर्सेस ही है, तो वहाँ पे है, उन्होंने अलॉट किए हैं डिपेंडिंग वेरी गुड अपॉन वेरी दैट। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी तो हम गुड। क्या यू आर कर रहे हैं लकी। सर कि हमने एक वर्कशॉप किया था, दीप्ति उस वर्कशॉप में थी। शी आल्सो वाज इन द विनिंग टीम, राइट दीप्ति? या तो देयर इज अ डन हॉर्स, वेरी गुड हॉर्स एंड्योरेंस के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट वर्कशॉप हो रहा है सितंबर में, उसमें भी दीप्ति उसको राइड करेगी। सो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर राइडर्स फेमिलियर विद द हॉर्सेस एज पैर वेल। देम अप। हाँ, तो वो कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं। एंड दीप्ति ऑल्सो, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मेरे खुद के लिए भी है। ऑब्वियसली एज इज जस्ट अ नंबर, बट जब हम सर को यहाँ देखते हैं और सर बात करते हैं, हमारे साथ में शेयर करते हैं, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ही इज हिमसेल्फ अ राइडर करेंटली, राइट? Yeah, And I he's mean, still not a keeping great on. rider but a rider. Well, it's about we being in have the seen ground, him. sir. It's about being in the ground and on the horse that inspires the next generations. So I think you're doing a very great job over there. But the thing is, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और उसी जोश के साथ में, जिसमें जो जोश जो है वो इवेंट के सबसे यंग राइडर में है, वो मैंने आप में देखा है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, राइट, लाइक आई एम 46, मैं हाउ मेनी मोर इयर्स एंड ऑल, बट व्हेन आई सी यू आई सेड ना, अभी तो बहुत साल बाकी है। नहीं बहुत है। हमारे साथ एक राइडर था, अभी उसने छोड़ दिया, पर he rode up to 67 68 he was riding. So there is no harm। अबे देखो वो सब, it's all about the mind and all about the body. If the body is supporting you, you have to push your mind. Absolutely. And you have to be lucky sometimes. Absolutely. Uday, I So see you. therefore
एक पॉइंट, देयरफॉर सेंसिबली राइडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे क्या होता है कि आदमी लोग एकदम जोश से, एकदम मैं यही इवेंट में ये जीत जाऊंगा, ये कर दूंगा, और फिर गिर जाते हैं, पैर तोड़ देते हैं, फैमिली बंद कर देता है, राइडिंग ये होता है वो होता है। तो सेंसिबली राइड करना, सेंसिबली अपने अपने राइडिंग करियर को आगे प्रोसेस में लेके जाना, ये पेशेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरडू नहीं करना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। उदय, आई वाज सीइंग यू टेकिंग वेरी नोट्स वेरी अग्रेसिवली पूरे सेशन में, सो No, no, this will be my first time, so this is a God-sent opportunity for me to learn from. well, you that's a all. very nice comment for us to hear. But what do you think? These sessions will help us take Absolutely. the sport forward, not only Absolutely, individually but as a community. Yes, sir. I mean, take it from a very, very amateur person. Please don't mind it otherwise. But the horse riding circuit is very, very small in India compared to abroad. When I was in Singapore, I saw, riders way. I mean, the amount of money and the amount of resources they put in, the amount of time they put in is way more when you compare with a country like India, where, there's no limit to anything what they do outside. So the kind of information which we actually seek out in India it's disproportionately available. Like खुसरू सर जैसे लोग हैं जो बहुत कम लोग हैं, मतलब हमको मिलने के लिए भी बहुत कम लोग मिलता है, and that too from a city like Raipur where information is very scarce. I need to go to Delhi or I need to go to Rajasthan to actually go and meet some of these people. So information is very, very disparate. It's not available everywhere. So events like this definitely do help us get in touch with people like you and get the information required. Thanks a lot for saying connecting sessions. We are also doing a on the ground practical workshop next month in September. Perhaps I'll share the details with you. Excellent. You Me might and my find it. colleague actually, Ashutosh Ji is also on the call, I guess. Yes, he's on. So he's a seasoned rider. He's been riding with the NCC for quite some time now. So he and I are two people who actually try to learn the art from people like you. So But then you should go thank on you. the ground and learn. No, the next month Absolutely. event, go Yes, on yes, the ground and learn, because that is a whole nother, that is a reality. True. That's a reality check. Yes, Absolutely. definitely. That's what Thanks, I was thanks Uday, and thanks Ashutosh for joining as well. You can have the email from Uday. You can send your emails as well to me. ईश्वर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईश्वर आप हैं? प्लीज कैमरा पे आ जाइए। ईश्वर, आप 2 बार जो है वो नेशनल्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और अब मतलब भगवान की दया से तीसरे बार भी होगा अगर नेशनल्स हुआ तो, और 40 से 60 पे हम जाने की कोशिश करेंगे। आप हमारी टीम का एक हिस्सा है, आप हमारी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसे इवेंट में जहाँ पे बेसिकली आपकी शुरुआत भी हमारे साथ में हुई थी 3 साल पहले, 3 या 4 साल हो गए शायद। गरुड़ स्क्वाड के आप राइडर्स हैं, और जूनियर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीनियर में भी करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी। तो ये सब सेशन जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन सेशन, उससे क्या लगता है आपको, लोगों को, आप जो गांव में बच्चे हैं उनको फायदा होगा अगर वो ऐसा अरेंज कर सेशन को अटेंड करते हैं तो? जी सर, बिल्कुल होगा सर। आपको क्या फायदा हुआ इस सेशन में आके? सर मेरे को काफी चीजों की जानकारी मिली, एंड्योरेंस के बारे में पता चला, और पहले वाले एंड्योरेंस से अब दूसरे वाले एंड्योरेंस से मैंने सेकंड एंड्योरेंस किया, उसमें काफी मेरे को मदद मिली सेशन के बाद में। घोड़े को कैसे चलाना है, घोड़े को कैसे राइड करना है, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, कहाँ पानी पिलाना है, सारी चीजें सर सेशंस में पता चली। एक उस टाइम में फ्रेशर था सर, उसमें उतना पता नहीं था क्या कैसे चलना है, घोड़े को कैसे चलाना है। कुछ सर एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा ईश्वर का। हाँ जी। वन ऑफ द एंड्योरेंस राइड्स, मेरे ख्याल से पिछले नेशनल्स का ही बात है या उसके पहले साल का बात है। तो एक ट्रैक था जहाँ पे ईश्वर डिसमाउंट होके घोड़े के साथ में वॉक कर रहा था और घोड़े के साथ में ट्रॉट कर रहा था, बेसिकली जॉगिंग अक्रॉस द विद द हॉर्स। और बाकी राइडर्स जो है वो बगल से निकल रहे थे और ईश्वर को बोल भी रहे थे, क्या कर रहे हो, थक गए क्या, उतर गए क्या घोड़े से, घोड़ा थक गया क्या, तो मजाक बना रहे थे। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग विद द हॉर्स एंड जॉगिंग विद द हॉर्स एक एंड्योरेंस ट्रैक पे अपने घोड़े को सलामत रखने के लिए और स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी वो बहुत ज़रूरी है।
तो वो एक्सपीरियंस ईश्वर का जब हुआ था तो हमने बात किया था, ईश्वर बोले कि सर ऐसा ऐसा बात हो रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, अपने जिस तरह से सही चीज है वो सही चीज को करेंगे और अपने को काम भी आएगा। उसी इवेंट में ईश्वर ने मेडल भी लिया। तो ये जी जो सर। वॉकिंग विद द हॉर्स है ये कितना जरूरी है सर ट्रैक पे? नहीं देखो, मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा कि आपने जब भी वॉक किया तो आपको कोई सिग्नल मिला कि घोड़ा थक गया है, या घोड़े को आपको उतरने का जरूरी पड़ा, या कुछ ऐसा हुआ, या आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को घोड़े को थोड़ा आराम देने का है? जी सर, मेरे को लगा घोड़े को थोड़ा आराम देना चाहिए। वहां पे क्या पत्थर थे, रास्ते में पत्थर वगैरह नुकीले पत्थर निकल हुए थे। तो मेरे को हाँ। लगा कि मेरे को उतर के ही राइड करना है, कुछ मतलब उतर के ही जॉगिंग करना है घोड़े के साथ। नहीं तो वो देखो, अगर अगर बहुत खराब पत्थर होंगे और अगर आप उतर के वॉक करोगे तो डेफिनेटली आप घोड़े को और बचाने की चांसेस में हो, उसको जी जी। लेम नहीं होने के लिए, तो वो डेफिनेटली फायदेमंद है। बाकी अगर आपने फिटनेस सही किया, अगर आपने अपने घोड़े का फिटनेस सही तैयार किया है घोड़े को, तो उसके बाद में फिर उतर के वॉक करने का इतना इतना बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, जी पत्थर है और अगर आपको लगता है कि ये एरिया में मेरे को डेंजर है और ये एरिया में अगर मैं उतरूंगा तो मेरा घोड़ा लेम होने का चांसेस कम है, तो यहाँ पे राइडर फिटनेस का बात आता है। अगर आप फिट हो, आप उसके साथ वो कर सकते हैं तो उतर के करो, नथिंग लाइक इट, दैट इज वो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर सिंपल ट्रैक है और सही जा रहे हो और अगर आपका घोड़ा फिट रेडी है और अगर आप कर सकते हो तो आपको राइड करना चाहिए, ये मेरा सोच है। हाँ, मैं लेकिन आप जस्ट जो बैकग्राउंड देता हाँ हूँ सर। हाँ, जब इन्होंने ट्रैक रेकी किया था उस टाइम पे, तो उस रेकी के टाइम पे उन्होंने उस सेक्शन को देखा था जहाँ पे वो पत्थर थे, नुकीले पत्थर वगैरह बराबर थे। तो बराबर। वहां पे पहले से ये डिसाइड किया था इन्होंने कि यहाँ पे हम नो, दैट्स वॉक वेरी गुड। करेंगे। और उसी सेक्शन पे काफी सारे घोड़े उन नुकीले पत्थरों से जो है इंजर्ड होके लेम भी हुए, आउट भी हुए। वो तो सही बात है, अगर अगर प्लानिंग अगर के वो हिसाब से हिसाब से इन्होंने उसने किया था। किया है तो सही बात है। हम्म। अगर फॉर दैट रीजन किया है तो मीनिंग उससे उससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती एक राइडर में। उससे और कोई बाजू वाला आपकी मजाक उड़ाए या नहीं उड़ाए वो सब बात छोड़ देने का, अपने को अपना मजा लेने का, अपना जो पार्टनर है उसको बचाना है और अपना इवेंट को अच्छी तरह से लाना है। और अगर आप ये सब 90 चीज सही करो, 90% सही करोगे तो आपका पोजीशन आना ही आना है। जी सर। आपको एक ही चीज करना है जो मैं बोलता हूँ अभी, आप गलती मत करो, दूसरे को गलती करने दो। आप समझे? हमने हमने ये देखा है कि कहीं कहीं पे आदमी 9वां आया है अंदर, उसने 9वां क्रॉस किया है लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। आप जी समझे? और मैं भी जितनी बार मैक्सिमम बार जो जैसे जो जो मेरा वो 60 किलोमीटर में फर्स्ट आया, वो फर्स्ट आने का कारण यही था कि जो मेरे से यंगर और बेटर राइडर्स थे वो सब ने इतना मस्ती किया कि वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में उनके घोड़े आउट हो गए। जी आप समझे? जी। सो जी वो भी इम्पोर्टेंट है कि अपन जितना घोड़े को संभाल के जाएंगे अपना चांसेस ऊपर लिस्ट में जाने का बेटर ही रहता है। थैंक यू सर। नथिंग, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑन दैट। और सेकेंड टाइम जो आप फेल हो गया उसमें क्या हुआ था? 20 किलोमीटर के बाद ये हो गया जी सर, ईश्वर का। उसमें क्या 40 और 60 किलोमीटर में टाइम नहीं मिला सर, एक ही महीने का टाइम था। हाँ पहले हाँ 40 हाँ और हाँ। 60 नहीं हो पाया सर, ट्रेन नहीं हो पाया। नहीं, वो हो सकता है, देखो अभी वो भी इंसान है। आप अपना सब कुछ सही करो लेकिन एक एक गलत पत्थर आ गया, खड्डा आ गया, या वो देखो, सब चीज सही होने के बाद में, सब चीज सही होने के बाद में वो दिन ही अच्छा नहीं हो सकता है आपके घोड़े के लिए या आपके लिए, और आप फेल हो सकते हो। जी जहां तक आपने जी अपने घोड़े को इंजर नहीं किया और जहां तक आपने अपने आप को इंजर नहीं किया और अच्छी तरह से आप घर पहुंचे और घोड़े को अच्छी तरह से स्टेबल में पहुंचाया, आपने अच्छा काम किया। आप समझे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को उस घोड़े को संभालना है ना, उस घोड़े को और 10 साल वापरना है। एक इवेंट में नहीं हुआ तो दूसरा इवेंट में होगा। बिल्कुल सर, आप हमारी समझे? टीम का एक मोटो है जिसको हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, और जब भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हमारे टी शर्ट पे रहता है वो, अश्व सर्वोपरि, द हॉर्स कम्स फर्स्ट। और उसी यस। हिसाब से हम काम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ है तो हम खुद ही एलिमिनेट होने के लिए और मतलब बाहर उठने के लिए जो है हमारी टीम का कोई एक बंदा जो है वो हिचकिचाता नहीं है। तो नहीं नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
Exactly. जैसे मेरा नेव्यू है जो बहुत अच्छा राइडिंग करता है, उसको एक वेट ने वही इवेंट जो 60 किलोमीटर में वो 40 किलोमीटर पे डिस्क्वालीफाई हो गया, वेट ने उसको आके एक ही चीज बोला बाद में कि आपके जैसा आदमी हमने देखा नहीं। मैंने आपको बोला लेम, आप हंस के निकल गए। बाकी किसी को बोलो लेम तो झगड़ा करने को आते हैं, नहीं नहीं ऐसा कर दो, नहीं नहीं वैसा कर दो। आपका जो मीनिंग जो क्या बोलते हैं कि इंटरनल लेवल है इतना ऊपर है कि आपने बोला नहीं मेरा घोड़ा लेम है, वेट ने बोला, वो आप हंस के निकल गया। आपने ना तो रोया, ना तो मारामारी किया, ना तो क्या बोला मेरा कोशिश करो। सी एक राइडर का यही यही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वेट ने बोला आपका घोड़ा ले, मान लो कि वेट ने बोला आपका घोड़ा लेम है और आपका घोड़ा लेम है और आपने उसको फिसला के भुसला के या कुछ भी करके पास करके आप सेकेंड राउंड में गए, तो आप सोचो जो घोड़े का नव चढ़ गया या घोड़े का मसल फट गया या घोड़े को कुछ इंजरी हुई है, उसके बाद में अगर आप घोड़े को 20 और किलोमीटर चलाओगे तो आप इतना एक परमानेंट डैमेज कर सकते हो जो घोड़ा आपको बाद में लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगा। सो एक मच्योर राइडर का तो इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर अगर एक मच्योर राइडर है और अगर उसको लगा कि लेम है और वेट ने भी नहीं देखा तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं मेरे को लगता है मेरा घोड़ा लेम है, मैं ये इवेंट में नहीं, मैं ये इवेंट बंद कर दूंगा, अगला इवेंट में मैं मजा करूंगा। मच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मच्योरिटी। तो सर और ये एक मच्योरिटी, सॉरी आई जस्ट फिनिश, ये मच्योरिटी भी इसमें आपका फिटनेस भी बराबर। आप थक जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट होके कुछ ना कुछ करोगे, गलत करोगे। आपको फिटनेस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको थकना नहीं है। आप अगर नहीं थकोगे तो आप सही सोच सकोगे, आप अगर थक जाओगे तो आप सब गलत सोचोगे। इसीलिए राइडर फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे सर तो सर एक ऐसा भी एग्जांपल है एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में ही है कि इंड्योरेंस के एक दिन पहले बैरियर ने नाखून थोड़ा ज्यादा काट दिया एंड रेड लाइन नजर आ गया, लेकिन फिर भी इंड्योरेंस में उतारा गया उस घोड़े को और जला हुआ मोबाइल लगा के ताकि उसको दर्द पता ना चले। तो ये चीज जो है आई मीन दिस इज क्रिमिनल, ऐसी चीजें होती हैं। सर अभी वो जो चीज होती है और नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर तो एक पूरा थीसिस लिखा जा एक सकता है, एक लेकिन वो सेशन अभी करेंगे हम। ये फोरम में कोई मतलब नहीं है। और इसको ऐसे तो मेरे पास 50 इंसिडेंट्स है जो हमको दुख हुआ है कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल सर। कोशिश करते हैं सबको, इसीलिए ये सेमिनार के ये सेमिनार से 2 आदमी का भी माइंड चेंज हुआ तो भी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, तो भी बड़ी एब्सोल्युटली। तो हम तो ये हर इवेंट में यही कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत इवेंट में एज अ पार्टिसिपेंट खड़ा रह के बोलता हूँ, आई एम अ जज ऑल्सो, लेकिन एज आई एम ओसी ऑल्सो, लेकिन मैं अल्टीमेटली इवेंट चालू होने के बाद में मैं पार्टिसिपेंट बन जाता हूँ और मैं पार्टिसिपेंट को समझाता हूँ कि भाई घोड़े को बचा के घर पे अच्छी तरह से लेके जाओ। आप जीतो नहीं जीतो वो सबसे बड़ा, आपका घोड़ा अच्छी तरह से घर वापस आया, वो आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। आपने मजा लिया उसका, आपने उससे मजा लिया, उससे इतना राइडिंग किया, मजा लिया, घोड़े को अच्छी तरह से घर पे लेके जाओ, दैट इज योर अवार्ड। फिर उसके बीच में आप क्वालिफाई हो गए, उसके बीच में आप 1 2 3 आ गए, वो अगली बात है, दैट्स अ बिल्कुल सर। बोनस। सर इस कॉल में एक इंसान है सर जिसका दिमाग मेरे को चेंज करना है, मैं काफी दिन से लगा हुआ हूँ बट उनको विश्वास नहीं होता। समीर, समीर ऑलवेज कीप्स मी आस्किंग, उसने अभी तक अपना नेशनल्स किया नहीं है, पहला नेशनल करने वाला है। ही कीप्स मी आस्किंग वन क्वेश्चन, होगा? डू यू थिंक, डू यू थिंक आई कैन डू इट, डू यू थिंक? तो एक जो पहला इवेंट है, पहले इवेंट के साथ में ये जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक आई कैन डू इट, तो उसको इफ यू हैव टू टॉक टू अ यंगस्टर एंड से यस यू कैन डू इट, तो क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं, पहला तो सवाल है व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू कम फर्स्ट और यू वांट टू डू द ऑन इवेंट। कैमरा। थैंक्स अमीर। आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। यू आर ऑन म्यूट। Actually, I have seen sir live. The event he had mentioned or the experience he had mentioned in this specific seminar, I was eyewitnessing that, and I have a recording of that. It Oh was my a God. super moment actually. No, that was God's grace, that I was just, that was God's grace on that.
In fact, Sameer sent me that clip and said कि ये हुआ, but I am so kind of energized by this whole scene. उसने वीडियो किया उस क्लिप का जब ये इवेंट हाँ है, वीडियो मेरे पास भी है। मैंने वो Yes, भेजा था उनको, and I was actually fortunate enough because I have seen that bonding between you and your horse and your skill sets. So नहीं ठीक है, मेरी I बात was छोड़ दो, thrilled. आज आपकी बात है, today it is your topic. So Sameer, what is it that you want to do? You want to participate, you want to win, or you want to I have want a to good time? participate and So good you time. want to participate, correct? In Yes. participate, you only want to come first, or you want to participate for what? Why do you want to participate? No, I want to आपको क्यों participate and participate करना है? enjoy the हम हिंदी में event. बात That's all. करेंगे। हम हिंदी में हाँ, आपको पार्टिसिपेट इसलिए करना है क्योंकि आपको अपने आप को अपने आप से ये है कि मैं ये चीज कर पा रहा हूं। बाजू correct. वाले ने किया नहीं किया, बाजू वाले ने फास्ट किया, बाजू वाले ने स्लो किया, बाजू वाला गिर गया, बाजू वाला ने ये किया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, करेक्ट? Right. अगर वो है तो आप कोई भी इवेंट कर पाओगे। Okay. प्रॉब्लम कहाँ होते हैं? जब हम एक दूसरे आदमी से अपने आप को कंपेयर करने की चालू करते हैं, वहां पे मिस्टेक्स करते हैं, वहां पे गुस्सा आता है, वहां पे कंट्रोल आपा हो जाता है, वो होता है। आप ये डिसाइड करो कि मेरे को ये इवेंट करना है, और नेशनल हो या अननेशनल इवेंट हो। एक नेशनल का एक क्रेज है, वो अलग बात है, नेशनल हो या लोकल इवेंट हो, आप एक इवेंट करो, आपको जाना है, अच्छी तरह से जाना है, इवेंट को एंजॉय करना है, सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करना है। आप अपने आप से कॉम्पीट करो, ओनली कॉम्पीट विथ योर सेल्फ, Correct. दूसरे किसी से कॉम्पीट मत करो। यू विल बी एबल टू एंजॉय द इवेंट एंड कम बैक होम हैप्पी टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इवेंट। That's मेरा the यही bottom बोलना line. है। Thank you दैट्स so द much. बॉटम लाइन। आप अगर दूसरे किसी से कॉम्पीट करके इवेंट में जाओगे तो आप दुखी घर पे आओगे। आप अपने आप से कॉम्पीट करो। सी, मेरा एक पोस्ट है, मैं आपको बाद में भेजूंगा कि it is with my horse, so I'm saying we are competing only with our yesterday, we are not competing with anybody else. हम हमारे कल से आज हमारा बेटर लाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर कितना आगे पहुंचा, विमल ने क्या किया, उसने क्या किया, उससे कोई निस्बत मत रखो। आपका लेवल रखो कि मेरा कल से मैं आज बेटर किया, आई हैव डन अ गुड जॉब। अपने आप आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अपने आप आगे बढ़ोगे, अपने आप सक्सेस आएगा, जो सक्सेस लिखा है वो आएगा। आप समझे? डू दैट, यू विल बी Sure. एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। बी काम, बी पेशेंट, एंजॉय द राइड, और आप एंजॉय करो, आप आराम से कर पाओगे। एंड you have got विमल एंड एवरीबडी ऑन विथ यू ऑल, तो दे आर एक्सपीरियंस इनफ। Sure. आपको वो एक्सपीरियंस Correct. को ही राइड करना है ना। Yes. You will be able to do it. Go ahead, please don't give up your dream, do it. Thank you so much. I appreciate. No, I hope I've answered what is required, and that's the truth. Yes. I ride Yes. for myself. I want to better than my yesterday. वही बात है। अर्पिता, आप हो यहाँ पे? अर्पिता, कैन यू हियर अस? आप सुन सकते हैं? शी इज अ यंग राइडर अभी सर। लास्ट वर्कशॉप में शी स्टार्टेड राइडिंग आई थिंक 1 वीक पहले, एंड शी आल्सो रोड विद एन एक्सपीरियंस राइडर इन अ टीम फॉर द 20 किलोमीटर्स। हाँ जी। तो अर्पिता ने काफी अच्छा किया था, बट मेरे ख्याल से अभी शायद है नहीं कैमरा पे, नहीं तो मैं उससे भी बात कर रहा था। बट एनीवेज, इफ देयर इज नो more questions, then we can actually close this session. Yet Yeah, another I think so. valuable session. बहुत अच्छा था sir. I know you are tired. I can No, see. I'm tired, but I'm not that tired. But we have 2 hours is more than enough. सबको अपना अपना भी देखना होता है, and anybody can ask any question anytime. I mean, the 3 of us can get on a con call, और किसी से भी बात कर सकते हैं। I'm available anytime. Absolutely. So yeah, for the next step, we look forward to our ground workshop in September. जो भी participate कर रहे हैं, तो I think that will be a fantastic thing to have. And then again, Khushru sir, we will touch base for the next online session as well.
कि हम क्या No क्या वहाँ पे problem. कवर करेंगे, क्या नहीं करेंगे. बट थैंक यू सो तो मच. आई थिंक आपका सितंबर होने के बाद में जो भी आप स्टेज पे बच्चे लोग को लेके जाते हो, उसके बाद में यू टेल मी व्हाट यू कवर्ड, व्हाट यू नॉट कवर्ड. We'll do a virtual seminar next time for them, so then they can be for the next camp ready. Absolutely. And perhaps, if the celestial bodies so are kind of in connection with us, तो आप भी रहेंगे सितंबर वर्कशॉप में. Let's see, we'll talk अभी about that. we need to talk. Two of us need to talk. Yeah, And we'll next talk time, if you about want to do the event, this from 8 in the evening to 10 in the night, I'm most happy about that. कि अगर सब लोग को अगर वो टाइम जमता है तो we can do that. right. We'll put Okay? something together. We'll put Yeah, something yeah. together. But thank you so much for the session, sir. Thank you, Once my dear. again. Thank you. All the Thank best. you Thank you. for all Take the care. participants. Bye bye.